आज के हमारे जो स्पीक करेंगे वो तरुण अरोड़ा जी हैं, जो जीएसटी पे हमारे मतलब कि मेन स्पीकर हैं आज के। और हमारे जो गेस्ट हमारे आज के चीफ गेस्ट कह लो, हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर प्रमोद जी हैं, वो भी आज हमारे साथ उपस्थित हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह हमें सहयोग देते रहेंगे। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू चेयरमैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द काइंड वर्ड्स। नाउ सबसे पहले भूपेंद्र जी। जी सर जी, अभी चलते हैं सर हमारे प्रमोद जैन जी के पास, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, गेस्ट ऑफ द डे। जी सर प्रमोद जी, ओवर टू यू सर, वेलकम। Thank you very much, Suresh Nandwani ji, Chairman of Panipat Branch, Vice Chairman Manpreet Singh ji Gambhir, Secretary ji Bhupendra Dikshit ji, all other managing committee members of Panipat Branch, Speaker for the day CA Tarun Arora ji, and all the members of Panipat Branch and others who have joined this Mahakumbh organized by the Panipat Branch. Really very exciting. Mahakumbh of GST industry wise we have done, really very exciting and a well thought thing. I personally don't though practice GST, but understand a bit because it is required for the audit and other income tax purposes also. And today the topic which is being taken would be taken by Tarun Arora ji, would be on the education and the NGO and the education institution and the NGO. Yes, it is very important to see about not only the entities who are doing the NGO or education activities, but certain activities which may be under CSR also. Because currently I am the chairman of the CSR committee of the ICI also. Yesterday we organized what दीक्षित साहब ने और सुरेश जी ने बोला कि इंटरनेशनल योगा डे कल बड़ा अच्छा रहा, सुबह 7 से 8:30 बजे रहा। YouTube पे है, कोई भी अभी भी देख सकता है, ICI के YouTube पे। So whether when the CSR is done, what would be the GST impact there on the companies on those CSR activities done directly by the company or through an NGO, both. So that also you may try and discuss that. And my really best wishes to all of you. You are doing a fantastic job. Learning and making others learn, because जब इस प्रोसेस में जाते हैं तो खुद भी लर्निंग होती है और सारे मेंबर्स की भी लर्निंग होती है. So my really best wishes. Today is the 9th day. Best of luck and best learning time for the today's meeting. Thank you very much. Thank you प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. और तरुण जी के पास हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम तरुण जी के पास चलते हैं. तरुण जी को मैंने सुना था एक बार हमारी पानीपत ब्रांच में पहले भी आ चुके हैं. जीएसटी की वर्कशॉप हुई थी हमारी 3 दिन की, तो उसमें तरुण जी आए थे. तो तरुण जी, वेलकम यू वंस अगेन ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑफ पानीपत ब्रांच. नाउ ओवर टू यू सर. At the outset, I would like to thank Suresh ji, Manpreet ji, and Bhupendra ji to give me this opportunity to represent my thoughts on the August audience. And I would also like to thank Pramod ji to give me another aspect of CSR to close the session. So I would be discussing CSR at the end of the session. And without wasting any further time, I would like to start my deliberation. Bhupendra ji, if you can allow me to share the screen. Yes, sir. Yes, sir. It's showing more disabled. Yes, sir. Now you can say. So the topic for today's discussion is divided in 2 broad categories. जो आज हम discussion करेंगे 2 broad categories में करेंगे, educational organizations और NGOs के relation. तो जब हम सोचते हैं, जब भी एजुकेशन के बारे में या एनजीओ के बारे में या जो एंटिटीज इनमें डील करती हैं, वो पहली चीज, वो पहला थॉट दिमाग में क्या आता है कि इन एंटिटीज के साथ सबसे क्लोजली, जब मैं जीएसटी एक्ट की बात करता हूँ, तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन थिंग विच इज एसोसिएटेड विद इट. सबसे कॉमन चीज क्या होती है? तो एक ही चीज दिमाग में आती है, एग्जेम्पशन. यानी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ से बहुत क्लोजली रिलेटेड रहती है एग्जेम्पशन. बट सिर्फ एग्जेम्पशन ही काम नहीं है. यस, इस पूरे कॉन्सेप्ट में 80% टाइम मैं भी एग्जेम्पशन पे लगाऊंगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जेम्पशन के अलावा इसमें और कुछ नहीं. तो हमारा मेन फोकस एग्जेम्पशन पे रहेगा.
सेकंड जो चीज, अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जीएसटी के अंदर टैक्सेबिलिटी का फ्लो कैसे चलता है। तो सबसे पहले एक सप्लाई होती है, सप्लाई के ऊपर सबसे पहले लेवी क्रिएट होता है। तो देयर इज अ सप्लाई जिसकी लेवी क्रिएट होता है। मैं सर्विसेज सेंट्रल टैक्स रेट, मेरी सारी सर्विसेज के रेट डिफाइन हो जाते हैं एंड इट इज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले लेवी क्रिएट हुआ, उसके बाद इसी सर्विस पे एक रेट डिफाइन हो गया। थर्ड एस्पेक्ट होती है कि इसमें से कुछ सर्विसेज को वो लोग एग्जेम्पशन दे देते हैं, यानी मैं थर्ड बैरियर पे चला जाता हूँ कि क्या मेरी सर्विस जिसपे लेवी क्रिएटेड है उसका रेट भी गिवन है, क्या वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में है या नहीं। जो मेरी मेजर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है दैट इज 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, तो मैं एग्जेम्पशन भी वेरीफाई करता हूँ। एंड सबसे लास्ट में मैं जाता हूँ कि क्या जिस सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ जिसपे लेवी क्रिएटेड है उस पर सप्लायर टैक्स पे करेगा या रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। तो लास्ट में मैं चेक करता हूँ कि क्या आरसीएम की नोटिफिकेशन दैट इज 13/2017 क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो मेरे को रिवर्स चार्ज पे पे नहीं करना, फॉरवर्ड चार्ज पे पे होगा। तो इन अदर वर्ड्स एग्जेम्पशन एंड आरसीएम मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल, लेकिन सीक्वेंस हमेशा ऐसे ही रहेगी। पहले लेवी क्रिएट होगा, उसके बाद उसका टैक्स का रेट आएगा, फिर शायद एग्जेम्पशन हो और फिर शायद उसको आरसीएम में डाला जाए। तो सीक्वेंस, नोटिफिकेशन का सीक्वेंस भी ऐसे ही और टेक्निकल और लॉजिकल प्रोसेस भी ऐसे ही। इसके अलावा एग्जेम्पशंस को समझने के लिए जब मैं 12/2017 को पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कोई भी सीरियल नंबर, कोई भी एग्जेम्पशन है, अगर सर्विस की हो चाहे गुड्स की हो, जब मैं वो नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ मेरे दिमाग में तीन चीजें होनी चाहिए। पहली, किस सप्लाई, व्हाट इज द एग्जैक्ट सप्लाई जिसको उन्होंने एग्जेम्पशन दी है। सेकंड, किस कैटेगरी ऑफ सप्लायर को एग्जेम्पशन है, क्या पूरे सारे सप्लायर्स एग्जेम्प्टेड है या कोई क्लास है जिसको उन्होंने अलग से एग्जेम्पशन दी है। थर्ड, रेसिपिएंट, क्या सारे रेसिपिएंट एग्जेम्प्टेड है या कुछ कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट। तरुण जी आवाज नहीं आ रही, शायद एक बार देख लेंगे आप उधर से। आपकी ऑडियो नहीं आ रही सर, आपकी ऑडियो नहीं आ रही सर। अब आ रही है सर, ठीक है, आ रही है तरुण जी, आ रही है, कंटिन्यू करिए सर। आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी।
या फिर वो एग्जेम्प्ट होगी अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सीरियल नंबर 66। यानी अगर सीरियल नंबर 66 में मैं फॉल नहीं करता हूं तो मेरी सर्विस ऑटोमेटिकली टैक्सेबल हो जाती है और उसका टैक्स रेट होगा 18%। एजुकेशनल सर्विसेज के अंदर भी जो एग्जेम्पशन है मल्टीपल जगह पे दी हुई है और मल्टीपल कैटेगरीज में दी हुई है, लेकिन उसमें से जो मेन है दैट इज सीरियल नंबर 66। इसके अलावा भी बहुत सारी नोटिफिकेशन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट 66 इज द नोटिफिकेशन थ्रू व्हिच दिस एग्जामिनेशन हैज बीन गिवन। 66 दो चीजों की बात करता है, सर्विसेज बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूं, मैं सप्लाई कर रहा हूं, मेरे एंड से सर्विसेज जा रही हैं और मैं उसके अगेंस्ट पैसे रिसीव कर रहा हूं। तो एक एस्पेक्ट उसने बाय सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे करी है और दूसरी सर्विसेज टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिल रही है उसकी बात करते हैं। हमारा पहला एस्पेक्ट रहेगा सर्विसेज, सॉरी व्हाट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर 12/2017 मेन नोटिफिकेशन के अंदर ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिफाइंड है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 3 ब्रॉड कैटेगरीज है। सबसे पहले वो बोलता है प्री स्कूल एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट। इन सिंपल वर्ड इसको मैं बोलता हूं कि ये स्कूल की बात कर रहा है, यानी जो एजुकेशन स्कूल के अंदर हम गेन करते हैं, प्री स्कूल इंक्लूडिंग अप टू हायर एजुकेशन, यानी 12th तक की एजुकेशन के अंदर कोई भी स्कूल अगर मुझे पढ़ा रहा है तो वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। सेकंड है एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ। एक ऐसी क्वालिफिकेशन जो एक लॉ अंडर इंडियन लॉ इट इज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्वालिफिकेशन के अंदर जो एजुकेशन हम यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस में लेते हैं। अभी हम इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज कि वहां पे जो मेरी वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, यानी जब कोई इंस्टीट्यूट वोकेशनल यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स, और तीसरे स्किल सेंटर्स जहां पे मैं अपने जाके स्किल्स को इंप्रूव करता हूं। तो बेसिकली दीज आर दी 3 कैटेगरीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसमें भी पहली जो कैटेगरी है स्कूल्स, उसमें कोई उन्होंने एडिशनल कंडीशन नहीं लगाई। अगर स्कूल है 12वीं तक पढ़ा रहा है इट इज एग्जेम्प्टेड, लेकिन अगर एजुकेशन किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करी तो उसने कैटेगोरिकली लिखा, मैं जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, यानी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं, ओनली दैट क्वालिफिकेशन व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ लॉ, ओनली दैट विल बी टर्म्ड, ओनली दैट इंस्टीट्यूट विल बी रेफर्ड टू एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और लास्टली वो एजुकेशनल वोकेशनल कोर्सेज व्हिच आर अप्रूव्ड, सिर्फ वो मेरे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनूंगा। जो सेकंड एस्पेक्ट है क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ, सर इसकी सबसे अच्छी बात यह है दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द जीएसटी लॉ और इवन इन द अर्स्टवाइज सर्विस टैक्स लॉ। ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि एक्चुअल में क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ का मतलब क्या है। लेकिन सर्विस टैक्स रिजीम में एक सर्कुलर इशू हुआ था, दैट सर्कुलर सेड दैट अगर कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी हो, अगर वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से रेगुलेट होती है तो इट विल बी डीम्ड कि वहां से जो भी आप काम कर रहे हो इट इज थ्रू अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 2 ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल AICTE से अगर मैं कोई काम कर रहा हूं या उसके साथ कोई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है तो वो भी मेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। थर्डली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो किसी इंडिपेंडेंट एक्ट से, यूनियन एक्ट से बने हैं, जैसे ICAI हो गया, ICSI हो गया, ICWA हो गया, एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन सर्कुलर नंबर 107/2019 ऑफ सर्विसेज। यानी एज सच ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन जहां पे भी कोई एक सेंट्रल बॉडी जो यूनियन की हो या फिर एक स्टेट की हो, अगर वो उस पूरी यूनिवर्सिटी को गवर्न करती है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ
HRD जो होती है, अगर वो उसको कंसर्न कर रही है, वो उसको डेवलप कर रही है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो सारे केसेस के अंदर इट विल बी डीम कि उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कोई भी बंदा पढ़ रहा है तो इट इज क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज को समझने में है, वेदर वी क्लासिफाई एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और नॉट। अभी हम जो पढ़ रहे हैं पहली एस्पेक्ट पे है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनेगा कौन? तो सबसे पहले बनेगा एक स्कूल, फिर वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स बनेंगे जो कि किसी सेंट्रल स्टैचू के अंदर बने हुए हैं, या फिर उनको गवर्न करने के लिए यूजीसी है, या फिर वो AICTE के अंदर है। इसके अलावा भी और चीजें हो सकती हैं क्योंकि डिफाइंड नहीं है। जो सर्कुलर के अंदर लिखा हुआ था वो एक्सट्रैक्ट्स मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किए। उसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट थी उसके अंदर इट वाज अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज। अगर मैं कोई वोकेशनल कोर्स कर रहा हूं, मैं गया, मैंने मोबाइल को ठीक करने की ट्रेनिंग ले ली, वेदर इट इज एन अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स। मैं गया, मैंने मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप रिपेयर करना सीख लिया, या मैंने टीवी रिपेयर करना सीख लिया, या मैं प्लम्बिंग का काम सीख रहा हूँ, या मैं कारपेंटरिंग का काम सीख रहा हूँ। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं जिनको सीखा जा सकता है, लेकिन क्या हर स्किल मेरा अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स बनता है या नहीं बनता? नहीं सर। तो एक्ट ने ही बताया है कि ओनली दोज कोर्सेज विच आर रन, जो स्टार्ट कर रहा है एक ऐसा इंस्टीट्यूट विच इज एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। मेरी वोकेशनल ट्रेनिंग की दो काउंसिल्स हैं, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। तो जो इंस्टीट्यूट है क्या वो उसके साथ रजिस्टर्ड है या नहीं? पहली चीज यस। उसके बाद क्या ये वही कोर्सेज कर रहे हैं जो अपेरेंटाइसिस एक्ट के अंदर नोटिफाइड है? इफ यस, तब आप वोकेशनल कोर्स के अंदर कंक्लूड होते हैं और आपका इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनेगा। ऐसे ही एक नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है, अगर आपका इंस्टीट्यूट उसके साथ लिंक्ड है तो आप यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनोगे। तो इन सिंपल वर्ड दो चीजें चेक करनी है वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, क्या मैं किसी काउंसिल के साथ, नेशनल काउंसिल या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल कोर्सेज के साथ इंक्लूडेड हूं? यस। क्या मैं अपेरेंटाइसिस एक्ट के अंदर जो कोर्स है वो करा रहा हूं? यस। इफ बोथ दिस थिंग्स आर सेटिस्फाइड, मैं एक अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स करा रहा हूं और मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन जाऊंगा। यानी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर्स मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे दे वुड बी मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। अभी हम उसको स्टडी करेंगे। मूविंग अहेड, अब हम पहले पार्ट में आ रहे हैं, सर्विसेज बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूं और ये सर्विसेज मैं दे रहा हूं, उसके ऊपर जो एग्जेम्पशन है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें पहली एग्जेम्पशन उन्होंने बोली, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैकल्टीज को या अपनी स्टाफ को सर्विस दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। सर्विस का नेचर, सप्लाई का नेचर डिफाइन नहीं है, रेसिपिएंट डिफाइन कर दिया। तीन चीजें मैंने बोली थी हमें चेक करनी है, सप्लाई, रेसिपिएंट और सप्लायर। सप्लायर होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सप्लायर है। वो कोई भी सप्लाई करे, एनी सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस की बात हो रही है, एनी सप्लाई ऑफ सर्विस टू 3 कैटेगरीज ऑफ रेसिपिएंट, ईदर हिज स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ। तो उसको एक ब्लैंकेट एग्जेम्पशन है, उसमें नेचर ऑफ सर्विस डिटरमिन नहीं करना। अगर स्टाफ को है एग्जाम, अगर स्टूडेंट्स को है एग्जाम, अगर फैकल्टी को है एग्जाम, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये देखना है क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हाँ, क्या स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को दिया, हाँ, सर्विस कोई भी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसी में उन्होंने दूसरी कैटेगरी दी, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है और उसके लिए आपसे एंट्रेंस फीस लेता है तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इश्यू आया कि एंट्रेंस फीस को अलग से लिखने की क्या जरूरत थी? मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूं, मैंने आप लोगों को बोला कि ये मेरा एग्जाम फॉर्म है, आप भरिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर मैं आपको अपना स्टूडेंट बनाऊंगा। यानी जब तक आप अपना एग्जाम नहीं देते, जब तक आप एग्जाम में पास नहीं होते, तब तक आप उसके स्टूडेंट नहीं बनते हो। और अभी जो हमने ए में पढ़ा वो कौन सी सर्विस थी? जब किसी स्टूडेंट को दी जाए तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन यहाँ पे तो आप स्टूडेंट हो ही नहीं, यहाँ पे अभी आप एक पोटेंशियल स्टूडेंट हो।
500 बच्चे बैठेंगे, उसमें से 50 सिलेक्ट होंगे, 2 लाख बच्चा बैठेगा, उसमें से 20,000 बच्चा सिलेक्ट होगा। सो इट मे और मे नॉट बी नेसेसरी कि सारे के सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाए। इसीलिए उन्होंने बोला यहाँ पे भी एक ब्लैंकेट एग्जाम्पशन है कि अगर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपसे पैसे ले रहा है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगेन सप्लाई होनी चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, एंट्रेंस फीस, सप्लायर होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रेसिपिएंट जो भी वो एग्जाम फीस भर के उस एग्जाम में बैठ रहा है वो मेरा रेसिपिएंट होना चाहिए। अगर ये तीनों सेटिस्फाइड हैं तो जो सर्विसेज एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे रहा है वो सारी एग्जेम्प्ट हो जाती है। सर अभी मैं जो प्रोविजंस हैं उनको पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको केस स्टडीज के साथ डिस्कस करेंगे। आई विल हैव अराउंड 7 to 8 केस स्टडीज जिसमें हम इसको डालेंगे और उस केस स्टडी से हमें बहुत सारी चीजें समझ लगेगा और मैं उसके अंदर जब केस स्टडीज एंड करूंगा तो इस पार्ट की जो क्वेरीज होंगी उसको भी टेकअप कर लूंगा। नेक्स्ट कैटेगरी है, ये वे हैव ऑलरेडी डिस्कस कि किसी भी फॉर्म में वो सर्विस दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अब है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी तक हमने पढ़ा मैं स्कूल हूं मैं सर्विसेज दे रहा हूं, मैं इंस्टीट्यूट हूं मैं सर्विसेज दे रहा हूं, मैं स्किल सेंटर हूं मैं सर्विसेज दे रहा हूं। अब हम चेंज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप लोग सर्विसेज दे रहे हो, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूं और आप मुझे सर्विसेज दे रहे हो। तो उसने बोला टोटल 5 कैटेगरीज है, अभी हम 3 डिस्कस कर रहे हैं। उसने बोला सबसे पहले आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हो, यानी एक स्कूल है जिसमें एक बस चलती है, वो बस चलाने वाले मैं हूं, मैं आप स्कूल हो, मैंने बस चला के आपको देता हूं ताकि आपके स्टूडेंट को, स्टाफ को, फैकल्टीज को उनके घर छोड़ के आऊं। तो जो मैं बस आपके लिए रन कर रहा हूं उसके जो मैं आपसे 5,000, 10,000, 50,000 रुपए महीने के पैसे लेता हूं, इट इज एग्जेम्प्टेड। यानी जो बंदा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज स्कूल को दे रहा है, स्कूल तो जो दे रहा है वो तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, वो भी एग्जेम्प्ट है। सेकंड, केटरिंग, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को केटरिंग की सर्विसेज दे रहा हूं, इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वाली है। तो यानी अगर मैं उसको केटरिंग की सर्विसेज दे रहा हूं, वो आगे जाके बच्चों को बेचता है नॉर्मल कोर्स में, दैट इज केटरिंग, या वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर मिड डे मील है, उस केस के अंदर भी वो मेरी एक एग्जेम्प्ट सप्लाई बन जाएगी, उसके अंदर मेरे को उस पे जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। एंड लास्टली सिक्योरिटी और क्लीनिंग, अभी मैंने बोला टोटल 5 है, पहले हम 3 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज। सर 3 कैटेगरीज हैं, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग। मैन पावर इसमें नहीं इंक्लूडेड है, यानी अगर मैं मैन पावर सर्विसेज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहा हूं, देन इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको बंदे दे रहा हूं फॉर हाउस कीपिंग, मैं उसको बंदे दे रहा हूं फॉर क्लीनिंग, मैं उसको बंदे दे रहा हूं फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज, देन इट विल बी एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो जिन लोगों के पास भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का काम है तो वो ये देखें कि मैन पावर का नॉमेनक्लेचर एग्रीमेंट में यूज हुआ है या सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउस कीपिंग, कौन सा नेचर यूज हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं कि ठीक है यार काम तो मैं हाउस कीपिंग का करा रहा हूं तो वो हाउस कीपिंग ही होगी, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द एग्रीमेंट, वेदर इट इज हाउस कीपिंग और नॉट। अब इसके अंदर उन्होंने एक चीज और ऐड कर दी, उन्होंने बोला ये ब्लैंकेट एग्जेम्पशन तीनों कैटेगरीज के लिए नहीं है, स्कूल, यूनिवर्सिटी और स्किल सेंटर्स के लिए नहीं है, ये पहली 3 जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल को एग्जेम्प्टेड है। यानी यूनिवर्सिटी अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, यूनिवर्सिटी अगर केटरिंग ले रही है, यूनिवर्सिटी अगर सिक्योरिटी क्लीनिंग सर्विसेज ले रही है तो उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। सिमिलरली अगर कोई स्किल सेंटर ले रहा है तो उसमें भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है। यानी ये जो 3 अभी हमने डिस्कस करी, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग और सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउस कीपिंग, इसको जो हम सिंपल वर्ड में बोलते हैं कि एडिशनल जो एंसिलरी सर्विसेज है, अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। यूनिवर्सिटी के केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, स्किल सेंटर के केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं है। यानी अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी को सर्विस दे रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन की, नो एग्जेम्पशन, केटरिंग की नो एग्जेम्पशन। सिमिलरली अगर मैं किसी स्किल सेंटर को दे रहा हूं तो एज अ सप्लायर मुझे कोई रिलीफ नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं।
इसमें 2 कैटेगरीज और हैं जो मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहा हूं। पहली वो बात करता है अगर मैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिशन के रिलेशन में या एग्जामिनेशन के रिलेशन में कोई सर्विसेज दे रहा हूं तो वो एग्जेम्प्ट है। और एक लास्ट कैटेगरी है अगर मैं कोई ऑनलाइन जर्नल्स या पीरियोडिकल्स दे रहा हूं और उसके लिए कोई पेमेंट ले रहा हूं तो वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगेन उन्होंने बोला इसके अंदर एडमिशन और एग्जामिनेशन तो सबको एग्जेम्प्ट है, एडमिशन और एग्जामिनेशन तो सबका एग्जेम्प्ट है, लेकिन ऑनलाइन जर्नल्स और पीरियोडिकल सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एग्जेम्प्ट है। यानी मैं ऑनलाइन जर्नल देता हूं, मैंने ऑनलाइन जर्नल स्कूल को दी तो मुझे टैक्स चार्ज करना है, मैंने ऑनलाइन जर्नल स्किल सेंटर को दिया तो मुझे टैक्स चार्ज करना है। लेकिन अगर मैंने ऑनलाइन जर्नल रेकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन के लिए दिया यानी स्कूल यूनिवर्सिटी सॉरी कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के लिए दिया तो वो मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नाउ टू कंक्लूड दिस, ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द इलस्ट्रेशन। लेकिन इसको कंक्लूड करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 3 कैटेगरीज में है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, स्किल सेंटर। पहला, अगर कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टाफ को, स्टूडेंट को, फैकल्टी को कोई सर्विस दे रहा है एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई फीस ले रहा है एग्जाम। अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम, केटरिंग एग्जाम, हाउसकीपिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा हूँ, क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा हूँ एग्जाम, सिर्फ स्कूल्स के लिए, बाकी सारी जगह टैक्सेबल। मैं उसके एडमिशन या एग्जामिनेशन की सर्विसेज दे रहा हूँ, सब केसेस में एग्जाम। ऑनलाइन जर्नल सिर्फ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में एग्जाम है, बाकी सारी जगह टैक्सेबल। अब एक बार एक केस स्टडी से लेते हैं। नाउ देयर वाज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन करा रहा था फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो उसका कहना ये था कि भाई मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो हूं, लेकिन मैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं वो है एक ऐसा कोर्स विच इज एन एजुकेशन, विच इज अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन, उसके एंट्रेंस के लिए। जब वो एंट्रेंस क्लियर कर लेगा तो उसके बाद वो एक रिकॉग्नाइज्ड नॉलेज होगी। तो एडवांस रूलिंग in the case of simple Rajinder Shukla, ये already very easy case भी था, लेकिन in this case they said that even if you are providing a specific education, but वो आपका fixed curriculum नहीं है। Secondly, आप उसको qualification खुद नहीं दे सकते हो। जो qualification दे सकता है, जो certificate issue कर सकता है उस qualification का, only that institute will become the educational institution for GST purpose। मैंने भी एमबीबीएस की कोचिंग दी और एक कॉलेज भी एमबीबीएस की कोचिंग दे रहा है, हमारा करिकुलम भी बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट हूं, वो रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट है। मेरे यहाँ से एक स्टूडेंट पढ़ने के बाद भी मैं उसको एक डिग्री नहीं दे सकता हूँ, मैं उसको एक सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन वो सर्टिफिकेट, वो डिग्री वो कॉलेज दे सकता है। तो वो कॉलेज, जो अथॉरिटी जिसके पास ऑथराइजेशन है टू इशू दैट सर्टिफिकेट, दैट डिग्री, वो एग्जेम्प्ट है। जस्ट बिकॉज मैं एक ऐसा कोर्स करा रहा हूं विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, मेरे को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इस केस में उन्होंने ये बोल दिया कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। उनको जो वो ट्यूशन फीस लेते हैं उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। इट वॉज अ वेरी सिंपल केस, इसलिए इस पे मैं ज्यादा टाइम स्ट्रेच नहीं कर रहा हूं। एंड आई एम मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। सर ये एक्चुअल लाइव इलस्ट्रेशन मेरे पास आई थी। मेरे पास एक प्री स्कूल है, मेरे वहां पे से 50 बच्चे मैं प्री स्कूल के अंदर पढ़ा रहा हूँ। 50 में से एट द एंड ऑफ द डे 2 बजे स्कूल बंद होता है या 12 बजे, जो भी टाइम है, मेरा स्कूल बंद हुआ, उसके बाद 20 बच्चे चले जाते हैं, 20 बच्चे चले जाते हैं, 30 बच्चे उसमें रह जाते हैं। वो डे केयर की सर्विसेज अवेल करना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास टोटल 50 बच्चे हैं, 50 में से जैसे ही प्री स्कूल खत्म हुआ 20 बच्चे चले गए, 30 बच्चे ओवरस्टे करते हैं फॉर डे केयर। उनके साथ एज्यूम करते हैं 10 बच्चे और आ जाते हैं जो डे केयर की सर्विसेज ले रहे हैं। यानी मेरे पास 2 कैटेगरीज हो गई। कुछ डे केयर सर्विसेज में अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूं, कुछ डे केयर सर्विसेज में अपने नॉन स्टूडेंट्स को दे रहा हूं। तो वेदर द टैक्सेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड नॉन स्टूडेंट्स विल बी सेम और डिफरेंट? My first answer to this question, जब मेरे पास ये 2016 या 17 के अंदर स्टार्टिंग में आया था, I said it is taxable. डे केयर टैक्सेबल है, चाहे स्टूडेंट्स को ही दो।
But when I again read the notification, so services by an educational institution to its student is exempt. कोई कैपिंग नहीं है, कौन सी सर्विसेज हो, क्या वो 30 बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी हैं, क्या आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, हाँ जी हैं, कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, हाँ जी दे रहे हैं, इट इज एग्जेम्प्ट। यानी चाहे वो डे केयर सर्विसेज है, इवन देन टू अ स्टूडेंट इट इज एग्जेम्प्ट, लेकिन नॉन स्टूडेंट के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है, वहां पे वही सर्विस आपकी टैक्सेबल बन जाएगी। यानी स्टूडेंट के लिए जो एग्जेम्पशन है वो नॉन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इसीलिए कैटेगराइजेशन, उसको डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी सर, मेरे स्कूल में फेयर लग रहा था, मैं स्कूल हूं, मैंने स्कूल में फेयर लगाया और मैंने बोला जिसको भी इस फेयर के अंदर आना है उसको 1000 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, तो उसमें स्टूडेंट्स भी आए और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी आए। अब मैंने 1000 रुपए ले लिए। अब जब मैंने 1000 रुपए लिए, स्टूडेंट से लिए, तो क्या वो एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा? अगेन 3 चीजें, कोई भी सर्विस एग्जेम्प्ट है अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को देता है। अब चाहे वो एंट्रेंस एंड एग्जामिनेशन हो, फेयर ही क्यों ना, एनुअल फंक्शन की एंट्रेंस फी क्यों ना, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन पेरेंट्स को कोई एग्जेम्पशन नहीं है, पेरेंट्स विल बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो पेरेंट्स को तो टैक्स देना ही पड़ेगा, जो एंट्रेंस, सॉरी पेरेंट नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स रेमिट करेगा ही करेगा। तो यहां से एक चीज, मैं इसमें और इलस्ट्रेशन ऐड नहीं कर रहा इस एस्पेक्ट के ऊपर, तो हमें सिंपल वर्ड में ये समझना है कि कोई भी कैटेगरी हो वो एग्जेम्प्टेड रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं उसको क्या सर्विसेज दे रहा हूं। अगर वो स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ है तो इनवेरिएबली मेरी सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, चाहे वो हॉस्टल हो, केटरिंग हो, XYZ हो, लेकिन सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देना चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी दे रही है तो वो टैक्सेबल हो सकता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं या एक एंटिटी हूं, मैं क्वेश्चन पेपर बना के देता हूं अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, मैं प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर देता हूं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। एप्लीकेंट ने बोला कि सर ये तो सप्लाई ऑफ प्रिंटेड मटेरियल है, मैं तो प्रिंट करके कुछ कागज दे रहा हूं, इट इज गुड्स लायबल टू जीएसटी, मेरे को मेरा आईटीसी दे दीजिए, मैं स्कूल से जीएसटी कलेक्ट करूंगा और आईटीसी अपना एडजस्ट करके आपको पेमेंट्स कर दूंगा। उसके बाद जो मेरी एडवांस रूलिंग थी उसने बोला नहीं सर, जो आपने सप्लाई किया वो गुड्स नहीं है, वो जो क्वेश्चन पेपर आपने छापा, आप उसको मार्केट में जाके बेच नहीं सकते हो। अगर आपने बेच दिया तो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो किया, मतलब नॉर्मल एक इंडियन पीनल कोड के अंदर एक डिफॉल्ट किया, एक फ्रॉड किया कि आपने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया। सेकेंडली, इवन इन दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने एक सेटअप किया था कि आप उसके बिहाफ में प्रिंटिंग करके उसको दे दोगे। उसने बोला इन दिस केस इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, उसने बोला आप कागज नहीं बेच रहे हो, उसने आपको कुछ चीजें लिख के दी, उसने बोला मेरे को ये चीज 4 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन प्रिंट करके दे दीजिए इस कागज पे ऐसे फॉर्मेट के अंदर। यानी एवरीथिंग हैज बीन गाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू यू। सब कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको बता रहा है, वो बता रहे कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, आप उसको उसकी डिजायर में वो चीज करके दे रहे हो। इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड सिंस एजुकेशन, अभी हमने देखा था उसके अंदर था, अगर मैं किसी एजुकेशन स्कूल को अगर मैं कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा हूं तो एग्जेम्प्ट है, अगर मैं उसको कोई केटरिंग की सर्विसेज दे रहा हूं वो एग्जेम्प्ट है, उसको अगर मैं हाउसकीपिंग की सर्विसेज दे रहा हूं वो एग्जेम्प्ट है। फिर 4th कैटेगरी आई थी एडमिशन और एजुकेशन, जो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो मुझे एग्जेम्पशन मिलती थी। तो यहाँ पे उसने बोला कि ये जो आप काम कर रहे हो, जो क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग कर रहे हो, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्सन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इज नॉट टू बाय दैट पेपर, आपसे वो कागज नहीं खरीदना चाह रहा है, वो आपसे प्रिंटिंग खरीदना चाह रहा है एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट पे इन अ कॉन्फिडेंशियल मैनर। उसने बोला इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक सर्विस के अंदर होने चाहिए थे, अकॉर्डिंगली इट इज अ सर्विस एंड ये एग्जेम्प्ट भी हो जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी 4th पार्ट के अंदर जो सर्विसेज टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें कवर्ड है। आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई। अगर किसी को कोई डाउट है वो एक बार रीपोस्ट कर देना,
आफ्टर ऑल दीज केस स्टडीज जो एजुकेशनल वाली है, आई विल फर्स्ट टेक अप द केस स्टडीज ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली। सर ये सिमिलर व्यू एजुटेस्ट सॉल्यूशंस की एडवांस रूलिंग में भी अथॉरिटी ने लिया है कि क्वेश्चन पेपर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड इट इज एन एग्जेम्प्ट सर्विस टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर एक नेक्स्ट केस स्टडी आई थी या एडवांस रूलिंग आई थी इन द केस ऑफ सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। वही फोर्थ कैटेगरी जो सबको एग्जेम्प्ट है, स्कूल को भी, कॉलेज को भी और स्किल सेंटर्स को भी। उसके अंदर इस एडवांस रूलिंग में इसकी स्कोप को डिस्कस किया गया कि एग्जैक्टली क्या क्या एग्जेम्प्ट है, कि इसके अंदर अभी इसमें सिर्फ एग्जामिनेशन की स्कोप की बात हो रही है कि क्या एग्जामिनेशन की स्कोप एग्जेम्प्ट है। तो उसमें उसने बोला 3 कैटेगरीज है सर। प्री प्रिंटिंग ऑफ एग्जामिनेशन आइटम, यानी एग्जाम से पहले की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो, एग्जाम के टाइम के अंदर या उसके बाद वाली जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो, और उसके बाद जो रिजल्ट आना है, जो रिजल्ट से रिलेटेड है वो, ये तीनों चीजें इस स्कोप के अंदर, यानी वो जो फोर्थ पॉइंट है उसके एग्जामिनेशन के अंदर कवर्ड होगी। अब इशू है सर प्री प्रिंटिंग में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं सर? क्वेश्चन पेपर बनाना हो गया, OMR शीट बनाना हो गया, आंसर शीट्स हो गई। पोस्ट एग्जामिनेशन के अंदर मार्क शीट्स हो गई, सर्टिफिकेट्स हो गए, और स्कैनिंग और प्रोसेसिंग जैसे वेबसाइट में रिजल्ट है या फिर वो पेपर लगा देते हैं, वो सारी चीजें अगर किसी थर्ड पार्टी से एक इंस्टीट्यूशन करा रहा है, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपने बोला मेरे को क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर दो, मुझे आंसर शीट प्रिंट कर दो, मुझे मार्क शीट प्रिंट कर दीजिए, मुझे सर्टिफिकेट्स प्रिंट कर दीजिए, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी इसकी स्कोप के अंदर उन्होंने बोला एग्जाम से पहले वाला चीजें, एग्जाम के टाइम की, एग्जाम के बाद की, रिजल्ट की भी सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी, तभी वो आपकी मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव इसको उन्होंने एग्जेम्पशन के अंदर इसको ट्रीट किया। नेक्स्ट सर एक बेसिक क्वेश्चन, अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि सर अगर कोई स्कूल सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर स्कूल यूनिफॉर्म्स और बैग्स बेच रहा है, कुछ नोटबुक्स बेच रहा है और कुछ बुक्स बेच रहा है, उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी? सर अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी इट वाज इन रिलेशन टू सर्विसेज। गुड्स के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अगर वो यूनिफॉर्म और बैग बेच रहा है तो वो टैक्सेबल है। 1000 रुपए से ऊपर की ड्रेस है तो 12%, नीचे की ड्रेस है तो 5%। वो एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक्स, नोटबुक्स वगैरह बेच रहा है, इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12%। प्रिंटेड बुक्स क्योंकि सबके लिए एग्जेम्प्ट है तो स्कूल के लिए भी एग्जेम्प्ट हो गई, यानी स्कूल को अलग से एग्जेम्पशन नहीं दी। प्रिंटेड बुक्स की एग्जेम्पशन तो ब्लैंकेट एग्जेम्पशन है, कोई भी प्रिंटेड बुक बेचेगा उसको एग्जेम्पशन है। तो इस केस के अंदर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर हमें यह समझना जरूरी है कि अगर वो सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर वो कुछ गुड सप्लाई कर रहा है तो इट मे बी चार्जेबल टू GST, सब्जेक्ट टू अगर यूनिफॉर्म और बैग है तो कंफर्म्ड है, नोटबुक्स है तो कंफर्म्ड है, बुक्स है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। सर उसके अलावा ये अलग अलग एडवांस रूलिंग्स हैं विच यू कैन रेफर कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और कौन सी एडवांस रूलिंग्स आई हैं, ऑलमोस्ट उसी लाइन पे हैं जो हमने करी हैं, तो इसलिए मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं डिस्कस करके। एंड आई वुड नाउ स्टार्ट कि एग्जैक्टली जो हमने अभी तक पढ़ा, एक तो ये समरी है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टाफ को दे रहा है, स्टूडेंट को दे रहा है, फैकल्टी को दे रहा है एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए दे रहा है एग्जाम, 2 में 5 चीजें, ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ स्कूल के लिए, केटरिंग सिर्फ स्कूल के लिए, सिक्योरिटी क्लीनिंग सिर्फ स्कूल के लिए, एडमिशन, एग्जामिनेशन तीनों कैटेगरी, स्कूल भी, कॉलेज भी, स्किल सेंटर भी, और लास्टली ऑनलाइन जर्नल सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस के लिए एग्जाम्प्ट है, बाकी सारी जगह टैक्सेबल। सर सीरियल नंबर 66 का तो अगर मैं ओवरव्यू बोलूं या फिर डिस्कशन बोलूं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर एक जो एस्पेक्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग वाला या वोकेशनल कोर्सेज वाला, वो बहुत लेंथी है। उसके अंदर आपकी एंट्री नंबर 69, ये 12/2017 का ही है कि अगर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोई प्रोग्राम करा रहा है या कोई भी सर्विसेज दे रहा है, ये अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने लिखा। सिमिलरली एंट्री नंबर 70 में उन्होंने बोला कि स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम के अंदर कोई आपकी सर्विस है या फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, यानी इन तीनों कैटेगरीज के अंदर भी अगर आपकी कोई सर्विस है तो वो एग्जेम्प्ट हो सकती है। अब इसको याद कैसे रखें? 66 को तो सबको याद रखना थोड़ा सा इजी है कि कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, स्किल सेंटर है,
इसके बाद आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखो कि सर अगर कोई स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग है, आपको कोई हाथ का हुनर जिसको हम प्रिसाइजली बोलते हैं, अगर वो कोई आपको सिखा रहा है, and that institute is not a private institute but a government regulated body or a registered entity, तब मैं एक बार ये नोटिफिकेशन के अंदर दोबारा विजिट कर लूं, मैं एंट्री 69 को विजिट कर लूं, 70 को विजिट कर लूं, 71 को कर लूं, 66 को कर लूं, और ये असरटेन कर लूं कि क्या ये जो कोर्स है या ये जो एंटिटी है क्या इनमें से किसी में रजिस्टर्ड है। इफ यस वो एग्जाम्प्ट है। हर चीज को याद कर पाना मुश्किल है, लेकिन मेरे को इंडेक्स पता हो, मुझे ये पता हो कि हाँ स्किल वाला है तो भी उसमें कुछ एग्जाम्पशन हो सकती है। अब मुझे वो एग्जाम्पशन देखने के लिए 12/2017 के अंदर जाना है। मूविंग एड, इसी के अंदर अब एक नेक्स्ट वो है क्या कहते हैं एग्जाम्पशन जो इन्होंने दी। अब ये सेकंड लाइन ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर चलेगी। मैं स्कूल हूं, आप ट्रांसपोर्टर हो, आप मुझे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हो। अब आपकी बात कर रहा हूं, आपने मेरे को सर्विसेज दी, वो तो एग्जाम्प्ट है। आपने वो ट्रक जो है या मोटर व्हीकल किसी से किराए पे लिया हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं स्कूल हूं, आप मेरे ट्रांसपोर्टर हो, आप मेरे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी स्टाफ को आके लेके जाते हो। आपकी और मेरे बीच की सर्विसेज तो एग्जाम्प्ट है। अब हम इशू कर रहे हैं कि आपने जो ट्रक ली, सॉरी बस ली थी या कैब ली थी, वो जिस बंदे से ली थी वो बंदा आपसे कोई टैक्स चार्ज करेगा नहीं करेगा। तो सीरियल नंबर 22 के एंट्री नंबर सी के अंदर उसने बोला कि वो सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट है। यानी अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ के लिए कोई सर्विसेज ले रहे हो, अगेन स्कूल तक ही एप्लीकेबल है, तो वो एक एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली लिंक होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। IIM वैली एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए पहले 3 कोर्सेज में कुछ एग्जाम्पशन थी, वो एग्जाम्पशन 31 दिसंबर से विड्रॉ हो चुकी हैं। यानी आज की डेट में IIM अगर 66 में कवर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसके सारे कोर्सेज टैक्सेबल है। अब इस पूरे के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रिगर करता है वो रजिस्ट्रेशन है। सर रजिस्ट्रेशन को हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। हमारी मेन सप्लाई एग्जाम्प्ट हो सकती है, लेकिन एंसिलरी सप्लाईज हैं, मेरा डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप है, मेरी सेल ऑफ यूनिफॉर्म्स हैं, मेरी सेल ऑफ नोटबुक्स हैं, ये सारी चार्जेबल टू GST है। तो जस्ट बिकॉज मेरी 80 लाख रुपए की टैक्सेबल एग्जाम्प्ट टर्नओवर है और 2 लाख रुपए की एग्जाम्प्ट टर्नओवर है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे, क्योंकि वो 2 लाख रुपए जो है 20 लाख की लिमिट से नीचे है। जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर की बात करूंगा तो उसके अंदर एग्रीगेट इंक्लूड एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल। तो मुझे सारी कैटेगरीज लेनी है, ओनली देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर आई एम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन और नॉट। मैं उसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकता हूं कि सारी सर्विसेज मेरी एग्जेम्प्ट हो। सर इसके अलावा एक मैरीटाइम कोर्स है जो DG शिपिंग कराता है, वो भी गवर्नमेंट ने बोला कि इट इज कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन 66, वो भी एग्जाम्प्ट है, बहुत स्पेसिफिक है। बट आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट की कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज हो वो यहाँ पे डल जाए, सो दैट हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ठीक है ये वाला कोई है तो मैं कहाँ पे जाके क्या करूँ। सर नाउ आई हैव टू स्टार्ट विद NGOs, बट बिफोर दैट आई विल लाइक टू say that if you have any queries in relation to educational institution, हम उसको take up कर लेते हैं and then I will restart NGO. किसी मेंबर की अगर कोई क्वेरी है तो सर आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं सर आप। अदरवाइज तरुण जी आप कंटिन्यू करें सर, क्वेरी शायद लास्ट में आएंगी। ठीक है सर। आ रही है सर, एक क्वेरी आई है तरुण जी चैट बॉक्स में। ओनली नर्सरी स्कूल इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओनली नर्सरी स्कूल इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? नो सर, अप टू 12th तक कोई भी, प्री स्कूल से लेके 12th तक कोई भी इंस्टीट्यूट हो वो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। प्लस कॉलेजेस भी हो गए, यूनिवर्सिटीज भी हो गए, इंस्टीट्यूशन भी हो गए, प्लस जो वोकेशनल कोर्सेज करा रहे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है नेशनल काउंसिल से या स्टेट काउंसिल से, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये सिर्फ नर्सरी नहीं है सर, बहुत सारे लिमिट है। नर्सरी भी है,
प्री स्कूल यानी स्कूल से पहले वाले, आपकी जो डे के जो पहले होता है जहाँ पे आप सिर्फ बच्चों को भेज देते हो कि वो कुछ सीखना स्टार्ट कर दे, नर्सरी से पहले वाला, वो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कवर हो जाता है। ठीक है तरुण जी, आप कंटिन्यू करें सर। हाँ जी। So next part of our today's discussion is non-government organizations. So सबसे पहला इशू ये आता है कि what is an NGO and what is a NPO. NGO और NPO में फर्क क्या है? क्या दोनों एक ही चीजें हैं या अलग अलग चीजें हैं? इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? तो सर जब मैं NPO की बात करता हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे। हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, इट कैन बी अ सोशल ऑब्जेक्टिव, इट कैन बी अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, इट कैन बी अ नोशनल ऑब्जेक्टिव, यानी एक ऑब्जेक्टिव है which is in relation to overall productivity, overall growth of the economy or overall growth of the society, तो हम जनरली उसको एक NPO बोलते हैं। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कोई भी फॉर्म कर सकता है, वो गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकता है, एक नॉन गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकती है, आप और मैं भी एक NPO बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मेन चीज क्या है कि वो जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज ऑलवेज सम सोशल कॉज और इकोनॉमिकल कॉज और पॉलिटिकल कॉज, जिससे सोसाइटी एट अ लार्ज जो है वो बेनिफिट हो या एक क्लास ऑफ सोसाइटी बेनिफिट हो। एनजीओ क्या है? एनजीओ वो एनपीओ है, इट इज एन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ भी एक एनपीओ है, एनजीओ एक एनपीओ ही है, लेकिन उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती, और उसका जो मेन एस्पेक्ट होता है वो होता है कि हम कुछ आपको ट्रेनिंग्स कराओ, आपकी कोई पर्पस है जो जिस पर्पस के लिए वो एनजीओ बना है। इट कैन बी कि मेरे को गाय को खाना खिलाना है, इट कैन बी मुझे अनपढ़ जो पढ़े लिखे बच्चे नहीं है उनको पढ़ाना है, या इट कैन बी कि मेरे को ओल्ड एज होम खोलना है। एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जब वो विदाउट प्रॉफिट करते हैं और जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तब वो मेरा एनपीओ बनता है, वो एनजीओ बनता है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, मैं उसमें अगर सेंटर डालूं और उसमें से उन ऑर्गेनाइजेशन को बाहर कर दूं जहां पे गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो टेक्निकली एनजीओ और एनपीओ एक ही चीज के सबसेट है। एनपीओ थोड़ा वाइड है, एनजीओ उसी की एक कैटेगरी है। एंड ये दोनों ही जो काम करते हैं, जो ये एक्टिविटीज एंटरटेन करते हैं, इन दोनों ही एक्टिविटीज के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है या जो मेन क्रक्स होता है कि ये लोग जो बनी है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज करने के लिए, इनका काम है कि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, दूसरों के लिए कुछ फेवर करें। अब इशू आ गया, अगर चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए काम किया तो जीएसटी की बात ही क्यों कर रहे हैं? जब मैं चैरिटी कर रहा हूं तो चैरिटी पे जीएसटी क्यों आना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले हमें दोबारा से कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। तो एक जीएसटी में जो सप्लाई की ट्रांजैक्शन है, जो सप्लाई की ट्रांजैक्शन है उसको अगर मुझे पूरा कंप्लीट करना है तो उसके अंदर क्या क्या लिंक्स होते हैं? सबसे पहले मुझे एक सप्लायर चाहिए, यानी एक सप्लायर है, वो एक रेसिपिएंट की इन्वॉल्वमेंट है। एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है, यानी दो इंडिविजुअल्स हैं, एंड सप्लायर रेसिपिएंट को कुछ सप्लाई कर रहा है, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो। So there is a supplier supplying certain goods or services to a recipient. Recipient उसके बदले में उसको कुछ पैसे देता है जिसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। तो there is a supply, उस सप्लाई के अगेंस्ट उसको कुछ कंसिडरेशन मिलती है, एंड ये पूरी ट्रांजैक्शन जो हुई है ये होनी चाहिए अंडर द एम्बिट ऑफ अ बिजनेस। ये पूरा बिजनेस के जंक्शन के अंदर होना चाहिए। बिजनेस इज डिफाइंड इन द जीएसटी एक्ट 2 subsection 17 of the GST Act, and in that definition I find no exclusion. बिजनेस की डेफिनेशन में तो कोई एक्सक्लूजन ही नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा इसके अदर इंग्रेडिएंट्स को।
यानी जब ये 5 चीजें कंप्लीट हो जाती हैं कि सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है, कंसिडरेशन और बिजनेस है, जब ये पांचों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तब मेरी पूरी सप्लाई की ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तब गवर्नमेंट, तब डिपार्टमेंट मेरे से जीएसटी चार्ज भी कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं, एक सप्लायर है, उसने एक सप्लाई करी एक पर्सन को, लेकिन इसकी जो पेमेंट करी वो थर्ड पार्टी ने करी। मैंने पेमेंट करी, पेमेंट करने के बाद उसने सर्विसेज दी, वो किसी थर्ड पार्टी को दी मेरी इंस्ट्रक्शंस पे। जैसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप अपने बच्चों की कोचिंग की फीस भर रहे हैं, वो जीएसटी भी चार्ज कर रहा है। अब उसके अंदर जो जीएसटी वो चार्ज कर रहा है, पेमेंट आप कर रहे हो, पेमेंट आप कर रहे हो, सप्लायर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसकी सर्विसेज रिसीव कौन कर रहा है? आपका बेटा या बेटी रिसीव कर रहा है। यानी बेनिफिशियरी अलग है, पेयर अलग है। इस केस के अंदर रेसिपिएंट अंडर जीएसटी एक्ट कौन बनेगा? इस केस के अंदर जीएसटी के अंदर रेसिपिएंट कौन बनेगा? जिसने पैसा दिया या जिसने सर्विसेज ली, कौन बनेगा रेसिपिएंट? इसको समझने के लिए रेसिपिएंट का मतलब समझना जरूरी है। 293 में रेसिपिएंट की डेफिनेशन डिफाइंड है, दो कैटेगरीज में ब्रॉडली डिफाइंड है, अगर कंसीडरेशन है और अगर कंसीडरेशन नहीं। तो पहली एस्पेक्ट करता है कि अगर एक सप्लाई की ट्रांजैक्शन है, एक सप्लाई की ट्रांजैक्शन है और उस सप्लाई की ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, यानी उसकी पेमेंट होगी, चाहे काइंड में हो चाहे मनी में हो, लेकिन कंसीडरेशन होनी चाहिए। अगर कंसीडरेशन है तो जो इंडिविजुअल, जो पर्सन वो कंसीडरेशन आपको दे रहा है, वो रेसिपिएंट बनेगा सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसका बेनिफिट कोई नहीं रहा है। यानी जिसने पैसे दिए वो आपका रेसिपिएंट बन जाएगा। उसकी सर्विसेज कौन अवेल कर रहा है, एक्चुअल कंजम्पशन कौन कर रहा है, एक्चुअल बेनिफिट कौन उठा रहा है, वो इररिलेवेंट हो जाता है जहां पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व है। लेकिन अगर कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो बी में वो कहता है अगर कंसीडरेशन नहीं है और गुड्स की ट्रांजैक्शन है तो जिसको आपने सामान दिया वो आपका रेसिपिएंट है। या अगर सर्विसेज का केस है तो जिसको आपने सर्विसेज दी, यानी बेसिकली द बेनिफिशियरी ऑफ दैट सर्विस, वो आपका रेसिपिएंट बनेगा। लास्ट में इसमें एजेंट को इंक्लूड किया हुआ जो आज का हमारा डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूं, इसको कंप्लीट करूं, तो रेसिपिएंट केस अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि मेरी ट्रांजैक्शन के अंदर कंसीडरेशन है या नहीं। कंसीडरेशन वेदर इन मनी और इन काइंड दोनों इंक्लूडेड होती है। क्या कंसीडरेशन है या नहीं है सर? कंसीडरेशन है तो जिसने वो कंसीडरेशन पे करी है, जिसने वो कंसीडरेशन डिस्चार्ज करी है, वो मेरा रेसिपिएंट बन जाएगा फॉर जीएसटी पर्पस। लेकिन अगर कंसीडरेशन नहीं है तो उस केस में जिसने वो सर्विसेज रिसीव करी हैं, जिसने वो सर्विसेज कंज्यूम करी है, जिसने उसका बेनिफिट लिया है, वो मेरा रेसिपिएंट बन जाएगा। सर इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बेसिक लिमिट, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन से आज अपनी ट्रांजैक्शन को बाहर निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन रेसिपिएंट और बेनिफिशियरी से निकालना बहुत आसान है। अभी उसको हम टेक्निकली जो डिस्कस करना है उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी मैं एक ग्राउंड वर्क ले कर रहा हूं कि कैसे मेरी वो जो 5 लिम्स हैं, ये जो 5 लिम्स हैं, इनको मुझे कैसे चेक करना है, कैसे सेटिस्फाई करना है। अब नेक्स्ट आ गया इस केस के अंदर जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, सप्लायर ने सप्लाई करी जिसका बेनिफिट किसी और ने लिया, कंसीडरेशन किसी और ने ली, तो इस केस में रेसिपिएंट कौन बनेगा? रेसिपिएंट बनेगा जिसने वो पे करी थी, द पर्सन हु बियर द कॉस्ट, जिसने वो कंसीडरेशन सप्लायर को पे करी है, वो रेसिपिएंट बनेगा। सर सिर्फ यहाँ पे यही समझना जरूरी था, रेसिपिएंट कौन बनेगा। नेक्स्ट, सॉरी सर ये ऊपर आएगा मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन। अब नेक्स्ट इशू आ गया कंसीडरेशन का क्या मतलब है। मैं इसमें जो फर्स्ट पॉइंट में रेड और ब्लैक है हाईलाइटेड, मैं उसको पढ़ रहा हूं। पेमेंट्स मेड और टू बी मेड, यानी पेमेंट में दे दी या देनी है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी वो पैसा, वो पेमेंट जो कहीं ना कहीं पे एक आइडेंटिफाइड सप्लाई के साथ लिंक्ड है,
जो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफाइड सप्लाई के साथ लिंक्ड है, वो कंसीडरेशन होती है। यानी जिसके साथ कोई सप्लाई लिंक्ड नहीं बनेगी, डायरेक्टली कोई सप्लाई नहीं आ रही है, इनडायरेक्ट भी कोई सप्लाई लिंक नहीं होती, वो कंसीडरेशन नहीं बन सकता। यानी या तो इट शुड बी डायरेक्टली, या उस पेमेंट को देने से मैंने आपको इंड्यूस किया, मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया कि सर आप ये सप्लाई इस बंदे को कर दो, या मेरे को कर दो, या थर्ड पार्टी को कर दो। तो जब तक एक कोरिलेशन नहीं बनता, जिसने पेमेंट दी और जो सप्लाई है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन नहीं बनता, सप्लाई और पेयर के बीच में एक रिलेशन नहीं बनता, वो पेमेंट भी कंसीडरेशन नहीं बनती है। अब वो चाहे रिसिपिएंट पे करे या थर्ड पार्टी पे करे, वो सेकेंडरी हो जाता है। तो इस पॉइंट से मेरे को सिर्फ एक चीज समझानी जरूरी थी कि जो कोरिलेशन है, सप्लाई इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। कंसीडरेशन जिसने दी है, जिसने कंसीडरेशन दी है, उसके इंटेंट भी होना चाहिए कि भाई वो कोई एक सप्लाई इंड्यूस कराना चाहता है, वो आपके हाथों या तो खुद रिसीव करे या थर्ड पार्टी को रिसीव करे, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि बेनिफिशियरी कोई और भी हो सकता है। पेयर मैं हूं, बेनिफिशियरी कोई और हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने जो पैसा दिया उससे मैं एक सप्लाई कराना चाहता हूं। अब इसको मैं अपनी इलस्ट्रेशन में ले डाउन करता हूं। आपने एक डोनेशन डाली, किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाके एक डोनेशन डाल, मंदिर के लिए उसके पास कुछ पैसा आया, यानी उसने एक अमाउंट रिसीव करी है। नाउ वेदर इट इज अ कंसीडरेशन और नॉट, ये इशू आ गया। मैंने एक अमाउंट रिसीव करी है, जनरल है, दान पात्र में डाल दी, किसी को नहीं पता कि कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है इससे आपको ये करना या वो करना। मेरे नॉर्मल डोनेशन बॉक्स के अंदर उन्होंने पैसे डाल दिए, मेरे पास पैसा आ गया, उस पैसे से मैंने लंगर कर दिया। अब यहाँ पे जो लंगर मैंने किया, मेरे पास कुछ पैसा आया और मैंने लंगर कर दिया। क्या जब मैंने वो पैसे डाले थे, मेरी ये इच्छा थी कि आप लंगर करो? मे बी हो, मे बी ना हो, लेकिन मैंने तो भगवान के आगे वो पैसे डाल दिए थे। मेरी ये इंटेंशन ये थी कि आप उससे लंगर करो, आप उससे लंगर करो, आप उससे मंदिर की कोई मूर्ति खरीदो, आप उसके अंदर कारपेट बिछवाओ, आप जो मर्जी करो, आप वहां से प्रसाद बांटो, लंगर ना करो, कुछ भी करो। मेरी इंटेंशन कोई आपसे रिसिप्ट करने की नहीं थी, कोई सप्लाई लेने की नहीं थी, ना आपने लंगर मेरे कहने से किया, वो तो आपके पास फंड इकट्ठा हो गया, आपने उसको लंगर में यूटिलाइज कर दिया। और यहाँ पे ये भी नहीं है कि मैंने आपको बताया कि आपको लंगर जो कराना है वो सिर्फ इस दिन कराना है, ऐसे कराना है। इट कैन बी पॉसिबल, मैं आपके पास गया, मैं एक एजुकेशन मंदिर हूँ, गुरुद्वारा हूँ, मैं आपकी पर्ची काटने गया कि फलाने दिन लंगर है, लेकिन अगेन उस टाइम पे भी जब मैं डोनेशन कर रहा हूँ, जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि आप मेरे बिहाफ पे लंगर करो या मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ लंगर करो। वो मेरी एक विश है कि मैं पैसे दे रहा हूँ और उससे एक लंगर हो रहा है, वो मेरा एक गुडविल जेस्चर है, बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट कि मैं डोनेशन दूं और आप मेरे को लंगर करके दोगे, क्योंकि यहाँ पे टू वे प्रोसेस नहीं है। डोनेशन का लंगर की सप्लाई से कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो कंसिडरेशन नहीं, जो डोनेशन है वो कंसिडरेशन नहीं बनती, क्योंकि एक डायरेक्ट लिंक नहीं है। सर थोड़ा सा इसके अंदर हमें ये समझना जरूरी है, पहले इसके अंदर ये देखते हैं कि सप्लाई क्या है। सप्लाई है जो लंगर में बांट रहा हूं, वो लंगर बांटने के लिए अगर मुझे कोई बोले कि ये 50,000 रुपए लो और आप ये लंगर कर दो, तो एक क्वेश्चन मार्क अराइज हो जाएगा वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट। जैसे नेक्स्ट केस जो मेरा है, नेक्स्ट केस के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको पेमेंट एक एनजीओ को करी और एनजीओ को बोला कि आप कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, तो वेदर इट विल बी एग्जेम्प्ट और नॉट, इतना इजी आंसर नहीं है सर, सारा एस्पेक्ट ही इसी पे लग जाएगा कि क्या ये एग्जेम्प्ट है या नहीं, या ये टैक्सेबल है। लेकिन इसके अंदर क्या है, पेयर कोई और है, पेयर आप हैं, मैं सप्लायर हूं, मैं एनजीओ, मैं एक सप्लाई भी कर रहा हूं जो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन है, और अगर ये कंसिडरेशन प्रूव हो जाती है कि जो आपने मेरे को चीज दी ये कंसिडरेशन है, तो ये पूरी ट्रांजैक्शन बिजनेस का नेचर ले लेगी और ये टैक्सेबल भी हो जाएगी। लेकिन कंसिडरेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, कंसिडरेशन ये कहता है कि जो पैसा दिया और जो एजुकेशन है वो डायरेक्टली लिंक्ड होनी चाहिए। अब इस केस के अंदर मैंने स्पेसिफिकली बोला कि ये 5,000, मैंने एक ट्यूशन टीचर को पकड़ा, उसको बोला ये लो 5,000 रुपए, एक ट्यूशन टीचर को पकड़ा, बोला 5,000 रुपए लीजिए और ये 4 गरीब बच्चे हैं इनको पढ़ा दो। उसने भी बोला ठीक है, उसने बोला सर मेरा तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि आपके कहने से मेरी ये सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं हो जाती, मैं ट्यूशन टीचर हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मेरे को तो जितनी भी पेमेंट आती है उस पर जीएसटी देना पड़ता है। तो उस केस में वो ट्यूटर, इवन तो आपने जो एक्टिविटी करी वो एक चैरिटेबल एक्टिविटी करी,
लेकिन जो सप्लायर था वो एग्जेम्प्ट नहीं था। सप्लायर ने जो सर्विसेज करी आपके बिहाफ पे उसने पढ़ाया और चार्जेबल टू जीएसटी हो गया। लेकिन इसी में से कुछ कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जिसको हम एनजीओ बोलेंगे या चैरिटेबल ट्रस्ट बोलते हैं, जिसको आइडेंटिफाई करके उन्होंने बोला अगर इनके थ्रू कुछ सिलेक्टेड सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट होंगे। सर अब हम एक्चुअल में जा रहे हैं कि एनजीओ और एनपीओ के रिलेशन में जो चैरिटेबल एक्टिविटीज एक्सेट्रा हैं उसको एक बार समझने के लिए। सर तो चैरिटेबल एक्टिविटीज जीएसटी में ऑलरेडी डिफाइंड है एंड इट मींस पब्लिक हेल्थ, मतलब कोई भी एक्टिविटी जो पब्लिक हेल्थ के रिलेशन में हो। पब्लिक हेल्थ के रिलेशन में क्या हो सकता है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, या तो मैं उसकी केयर कर रहा हूं या काउंसलिंग कर रहा हूं। सर केयर और काउंसलिंग भी इसमें बहुत ओपन एंडेड नहीं है। केयर और काउंसलिंग भी वो कहता है टेम्परेरी इल पर्सन की। अब हम सर वो पढ़ रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटीज जीएसटी पर्पसेस के लिए चैरिटेबल एक्टिविटीज है। इसमें टोटल 4 ब्रॉड कैटेगरीज में उन्होंने एक्टिविटीज को डिफाइन किया है। मीनिंग डेफिनेशन है, कोई इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी जो यहाँ पे हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे वही चैरिटेबल एक्टिविटी है जीएसटी के लिए, उसके अलावा कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। टोटल 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया गया, जिसमें से पहली कैटेगरी है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को भी 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है, जिसमें से पहला है केयर और काउंसलिंग। केयर और काउंसलिंग अगर मैं करता हूं किसी टेम्परेरी इल पर्सन की या जिसको मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसकी अगर मैं कोई केयर कर रहा हूं, उसकी मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, तो वो एक चैरिटेबल एक्टिविटी है। 2, अगर कोई एचआईवी या एड्स से इंपैक्टेड है, इन्फेक्टेड है, उसको अगर मैं कोई केयर कर रहा हूं, उसकी मैं कोई काउंसलिंग कर रहा हूं, इट इज एग्जेम्प्ट। अगर मैं किसी को जो ड्रग्स से एडिक्टेड है उसको मैं रिमूव कर रहा हूं, उसका ड्रग एडिक्शन को रिमूव करने के लिए उसको केयर कर रहा हूं, उसकी काउंसलिंग कर रहा हूं, वो भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी है। लास्टली, अगर मैं पब्लिक में अवेयरनेस कर रहा हूं कि हेल्थ के बारे में, मैं डायबिटीज के बारे में या तंबाकू, टीबी से जो तंबाकू होता है उसके लिए मैं प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए कर रहा हूं, या मैं फैमिली प्लानिंग के लिए उसको कुछ बता रहा हूं कि ये करिए ये ना करिए, एचआईवी से बचाने के लिए कोई काम कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली मेरी बनती हैं हेल्थ के रिलेशन में। हेल्थ के रिलेशन में ऑलरेडी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो कर रहे हैं, वो तो एग्जेम्प्ट है, हॉस्पिटल जो कर रहे हैं, क्लिनिक जो कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, एक चैरिटेबल ट्रस्ट अगर वो कर रहा है, क्योंकि वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो हॉस्पिटल नहीं है, वहां पे एक बंदा आके, मैं और आप जैसे जाके किसी एक बंदे की सिर्फ काउंसलिंग कर रहे हैं कि मेरे को थोड़ा बहुत पता है, चलो ठीक है, या मैं फैमिली प्लानिंग के लिए उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं, इवन इन दोज सर्कमस्टांसेस द एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज चैरिटेबल एक्टिविटी। 2, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे मैं किसी रिलीजन को एडवांसमेंट के लिए यूज करता हूं, उसकी स्पिरिचुअलिटी इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद रिलीजन, 2 अलग अलग चीजें। मैं जैसे मेडिटेशन है, दैट इज अ स्पिरिचुअलिटी, तो अगर मैं किसी को स्पिरिचुअलिटी के लिए एडवांस कर रहा हूं, उसको इंक्लाइन कर रहा हूं, उसके लिए मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं, उसके लिए मैं सेंटर्स लगा रहा हूं, मैं योगा की क्लासेस लगा रहा हूं, तो ऑल दीज एक्टिविटीज इफ डन बाय अ कैटेगरी ऑफ सप्लायर, 3 चीजें हैं सर, सप्लायर, रिसिपिएंट और सप्लाई। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सप्लाई की कर रहे हैं, सप्लायर अभी देखेंगे कौन है। अभी हम बात कर रहे हैं कि किस कैटेगरी को एग्जेम्प्ट किया गया, अब वो कैटेगरी कौन सी सप्लायर दे रहा है तब एग्जेम्पशन है, वो अभी हमने डिस्कस करना है। अभी हम सप्लाई बात करें, कौन सी सप्लाई को गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट बोल रही है, यानी हेल्थ की सप्लाई को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट बोला। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा की सप्लाई को उन्होंने एग्जेम्प्ट बोला। 3rd कैटेगरी उन्होंने बोली एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो ऑफ 3-4 कैटेगरीज ऑफ पीपल, होमलेस, ऑर्फन और अबैंडन्ड चिल्ड्रन के लिए, फिजिकली और मेंटली अब्यूज और ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन के लिए, प्रिजनर्स के लिए, या जो 65 ईयर से ऊपर रहते हैं और रूरल एरियाज में रहते हैं, अगर इनके लिए मैं कोई एजुकेशन का प्रोग्राम कर रहा हूँ, इनके लिए कोई स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो वो भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी है। सर अगेन, मैं एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हूं, मैंने अपने यहाँ पे 4 गरीब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक मेरी चैरिटेबल एक्टिविटी है।
कोई एक मेंटली अब्यूज पर्सन था या कोई प्रिजनर था, मैं वहां पे जेल में जाके मैंने परमिशन लेके उनको वहां पे जाके उनको एजुकेट कर रहा हूँ, उनको स्किल डेवलप करा रहा हूँ, तो वो भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर आ जाएगी। सिमिलरली 65 इयर्स की एज से ऊपर वाले बंदों को अगर मैं रूरल एरिया के अंदर एजुकेशन या स्किल की ट्रेनिंग दे रहा हूं तो वो भी एक एग्जाम सर्विस बन जाएगी, बिकॉज इट इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी। एंड लास्टली, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना, चाहे वो वाटरशेड हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, या इन्वायरमेंट इन व्हाटएवर नेचर एंड काइंड, इन्वायरमेंट को अगर मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं तो इट इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी। इट विल इंक्लूड, अगर मैं सिर्फ प्लास्टिक्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं सी बेड्स पे जाके प्लास्टिक और गंद इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं इन्वायरमेंट को प्रिवेंट कर रहा हूँ, प्रिजर्व कर रहा हूँ, तो इन सारे केसेस के अंदर जो एक्टिविटी मैंने करी वो सारी की सारी मेरी चैरिटेबल एक्टिविटीज बन जाती है। अब अगर मैं इसको नटशेल में फिर से बोलूं तो देयर आर 4 एक्टिविटीज: हेल्थ, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, एजुकेशन एंड स्किल, एंड लास्टली एनवायरमेंट। हेल्थ, रिलीजन, एजुकेशन, एनवायरमेंट, ये 4 कैटेगरी या एक्टिविटीज अगर मैं कर रहा हूं तो ही सिर्फ चैरिटेबल एक्टिविटी है। इसके अलावा कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी बने या ना बने, ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ, आप उसको ये बोल सकते हो सर क्योंकि ये डोनेशन था, ये तो सप्लाई नहीं बनी, वो सेकेंडरी है। लेकिन अगर कोई और एक्टिविटी है, मैंने आपको बोला कि एक ट्यूटर को बोला कि तू पढ़ा दे, वो अभी तक तो हमने देखा वो चैरिटेबल एक्टिविटी बन रही है, वो सप्लाई, एग्जाम सप्लाई लग रही है, लेकिन क्या वो सप्लायर एग्जाम है या नहीं, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैरिटेबल एक्टिविटी एज पर जीएसटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जीएसटी और इनकम टैक्स एक्ट में क्या डिफरेंस है? जीएसटी की तो अभी हमने पढ़ ली, 4 चीजें ही हैं, मीनिंग की डेफिनेशन है, इससे ऊपर प्लस नहीं हो सकता, इसमें से माइनस नहीं हो सकता। 4 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर मेरी जो चैरिटेबल एक्टिविटीज है डिफाइंड है। अब जब मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं, वो बोलता है इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इसमें आप रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, ये सारी चीजें इंक्लूड कर दी। लेकिन इसमें उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। सर, आई एम नॉट एन जीएसटी एक्सपर्ट और ये डेफिनेशन आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता होंगी, लेकिन सिर्फ जो चीज इंपॉर्टेंट है समझने की वो ये है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ट्रेड और कॉमर्स भी अलाउड है अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ट्रेड और कॉमर्स भी अलाउड है, लेकिन जीएसटी के अंदर ट्रेड और कॉमर्स पर से बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वहां पे 4 कैटेगरीज आइडेंटिफाइड है, अगर आप 4 में फॉल कर रहे हो तो चैरिटेबल एक्टिविटी, अदरवाइज नहीं है। इनकम टैक्स में बोलता है अगर आपकी कुछ परसेंटेज आपकी एक्टिविटीज जो है एंसिलरी है, वो जैसे मैं टेंपल चला रहा हूं उसके साथ मैं सीडीज बेच रहा हूं या स्टैचूज बेच रहा हूं विच इज एंसिलरी, और वो 25% से कम टोटल रेवेन्यू बन रहा है, तब भी हम आपके पूरे इंस्टीट्यूट को चैरिटेबल पर्पस के लिए मानेंगे। लेकिन जीएसटी के अंदर स्कोप बहुत नैरो कर दिया है, बहुत छोटा कर दिया है। तो जस्ट बिकॉज एक चीज इनकम टैक्स में चैरिटेबल है, इसका ये मतलब नहीं है वो जीएसटी में भी चैरिटेबल होगा। एंड इसका एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस रूलिंग है, और सर ये एडवांस रूलिंग एपिलेट के पास चली गई थी, एपिलेट से भी सेम रिजल्ट आया जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने दिया था, श्रीमद रामचंद्र अधिनायक सत्संग साधना केंद्र, इसके अंदर ये एडवांस रूलिंग आई थी। और क्वेश्चन क्या था, ये ट्रस्ट जो है 12AA में रजिस्टर्ड थी, ट्रस्ट 12AA में रजिस्टर्ड थी। ये ट्रस्ट क्या करती थी, जो अपने एडवांसमेंट, स्पिरिचुअलिटी वाली एडवांसमेंट थी वो तो कर ही रही थी, साथ में कुछ मूर्तियां बेच रही थी, कुछ बुक्स बेच रही थी, कुछ सीडीज बेच रही थी, कुछ डीवीडीज बेच रहे थे। तो ये साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें कर रहे थे। इन सारी चीजों के अंदर जब मैं एक ट्रस्ट होके ये सारी चीजें कर रहा हूं, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव ही है, वो चैरिटेबल एक्टिविटी है। साइमल्टेनियसली कुछ चीजें मैं कर रहा था। इन्होंने अपनी प्ली में क्या बोला कि सर हम तो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, इनकम टैक्स वाले भी हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमें चैरिटेबल मानिए कि ये सारी चैरिटेबल एक्टिविटीज है और इसके ऊपर हमें कोई जीएसटी पे नहीं करना चाहिए। लेकिन अथॉरिटी ने बोला सर just because you are a charitable institute in income tax act does not mean you are a charitable institute या you are doing charitable activity under GST। जो भी हम डिस्कस करके आए, उसने बोला 12/2017 में चैरिटेबल एक्टिविटी डिफाइंड है, वो एक विजन दे रखा है कि ये 4 चीजें चैरिटेबल एक्टिविटी है। अगर उसके अलावा आपने कुछ बेचा, उसके अलावा आपने कुछ सेल किया, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी।
और उसने ये बोला कि जितने भी गुड्स वगैरह हैं वो चार्जेबल टू जीएसटी होंगे, उसमें कोई एग्जेम्पशन या कोई रिलीफ नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बनना इनकम टैक्स में का मतलब ये नहीं है कि वो जीएसटी में भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बन जाएगा, दो सेपरेट चीजें हैं। उसने बोला जीएसटी के अंदर हमने मीनिंग डेफिनेशन दी है, उसमें सिर्फ 4 चीजें हैं, पब्लिक हेल्थ, इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड स्किल ऑफ सिलेक्टेड पीपल, सबका नहीं, सिलेक्टेड पीपल का, और लास्टली उसके अंदर हमने एक कैटेगरी दी। तो उसमें हमने 4 चीजें बोली कि ये 4 चीजें आपकी बनेंगी चैरिटेबल एक्टिविटीज अंडर जीएसटी। इनकम टैक्स एक्ट एक तो इंक्लूसिव से स्टार्ट होता है, बहुत बड़ा हो गया। सेकेंडली उसने ट्रेड और कॉमर्स को भी इंक्लूड कर दिया। तो इस केस में एडवांस रूलिंग ने भी पहले इसको हटाया था और एपिलेट ने भी इसको रिमूव कर दिया, बोला नहीं सर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इनकम टैक्स में है, कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी में जो आप काम कर रहे हो इट इज नॉट अ चैरिटेबल एक्टिविटी, जितनी भी सप्लाई ऑफ गुड्स आप कर रहे हो इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स एज पर रेलेवेंट नोटिफिकेशन, यानी अगर वो टैक्सेबल गुड है तो टैक्स लगेगा, एग्जेम्प्ट गुड है तो एग्जेम्प्ट लगेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये समझना जरूरी है, एक परसेप्शन अपने अपने माइंड से हटाना जरूरी है कि चैरिटेबल इन इनकम टैक्स इज इक्वल टू चैरिटेबल एज पर जीएसटी, दोनों सेपरेट हैं और जीएसटी का तो बहुत नैरो है, बहुत छोटा है। अब सर एक जीएसटी जो फ्लायर आया था चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, उसके अंदर एक एक्सट्रैक्ट है जिसको मैं वर्बेटम पढ़ना चाहूंगा। ये कहता है, मैं सिर्फ रेड वाला पढ़ रहा हूं, ये मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ता हूं। देयर कुड बी मेनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट which are not covered under by the definition of charitable activities as given in the notification। हमने देखा वहां तो 4 कैटेगरी भी कवर है, और मैं लेकिन एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होके बहुत सारी एक्टिविटीज करा रहा हूं, तो बाकी सारी एक्टिविटीज का क्या होगा? तो फ्लायर ने भी कैटेगोरिकली बोला सच सर्विसेज वुड अट्रैक्ट जीएसटी। फॉर इंस्टेंस, अब उसने इलस्ट्रेट भी किया क्या क्या चीजें, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स फॉर अ पिलग्रिमेज, मैं आपको वैष्णो देवी के टूर पे लेके जा रहा हूं, मैं आपको गोल्डन टेम्पल लेके जा रहा हूं, उसके लिए मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हूं, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, बस लेके जा रहा हूं, मैं वैष्णो देवी लेके जा रहा हूं, गोल्डन टेम्पल लेके जा रहा हूं। उसने बोला वो सारी चीजें टैक्सेबल है। आप अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट का राइट दे रहे हो कि आप मेरे मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट लगा लीजिए, इट इज टैक्सेबल। आप उसको ये बोलते हो कि आपको एक इवेंट हम कर रहे हैं, उस इवेंट में एंट्री की फीस आपकी XYZ है, अगेन इट इज टैक्सेबल। अगर इंडिविजुअल एग्जेम्पशन है एक तो वो अलग बात है, लेकिन पर से आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं है। यानी बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर लॉ ने या फिर डिपार्टमेंट ने ये कन्वे कर दिया है कि सर चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ 4 एक्टिविटी है, इसके अलावा आप कुछ भी करो, इसके अलावा आप कुछ भी करो वो चार्जेबल टू टैक्स रहेगा ही रहेगा। इसको सर मैं एक बार बाद में लिंक कर दूंगा। अब मैं आ गया, हमने ये डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटी क्या है। अब हम डिस्कस करने आ रहे हैं कि चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर एग्जेम्पशन क्या है। तो पहली एग्जेम्पशन वो ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जो 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई भी पर्सन जो 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो मेरा चैरिटेबल एक्टिविटी अगर दे रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, 3 चीजें, रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, डूइंग अ चैरिटेबल एक्टिविटी इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। तो 3 चीजें चेक करनी है, इनकम टैक्स एक्ट में 12AA में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो सप्लायर होना चाहिए, चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है तब जीएसटी में उसको एग्जेम्पशन मिल रही है, अदरवाइज इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। सर इसी के अंदर सेकंड कैटेगरी है, ये बहुत वाइड कैटेगरी है। अब यहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटी वर्ड नहीं है, यहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटी वर्ड नहीं है, इसका एम्बिट बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चीजें आ गई। तो पहली आइटम वो बोलता है सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, यानी कोई भी पर्सन, मैं बंदा हूं, मैंने अपने घर में पूजा करानी थी, दैट इज अ रिलीजियस सेरेमनी, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, तो वो जो पंडित जी को मैंने पेमेंट करी, जो मैं उनको पे कर रहा हूं, उसके ऊपर उनको जीएसटी नहीं देना क्योंकि वो एक रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट कर रहे हैं विच इज एग्जेम्प्टेड।
यानी कोई भी रिलीजियस सेरेमनी किसी भी रिलीजन की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी कैटेगरी के अंदर कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही है और कोई पर्सन उसको करा रहा है, उसके लिए जो भी वो पेमेंट रिसीव कर रहा है वो एग्जेम्प्ट होगी सर। तो कोई भी रिलीजियस सेरेमनी कहाँ पे, आपके घर पे हो रही है या उसी इंस्टीट्यूट में हो रही है, पार्क में हो रही है, 5 स्टार होटल में हो रही है, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, क्या रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, हाँ जी सर रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, तो वो मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर जीएसटी। सेकेंड चीज जो इसके अंदर एग्जेम्प्ट है, मेरी एक रिलीजियस प्लेस है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसको मैंने रेंट पे दिया, उसके साथ एक पार्क लगता था, मैंने वो रेंट पे दे दिया, वो पार्क भी उसी इंस्टीट्यूट का है, उसी चैरिटेबल ट्रस्ट का है, तो वो जो मैंने रेंटिंग करी है वो रेंटिंग भी एग्जेम्प्ट है। यानी अगर कोई 12AA वाली रजिस्टर्ड जो एंटिटी है, इसके अंदर उन्होंने 2 कैटेगरी और ऐड कर दी, 1023C और 1023BBA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इन तीनों में मैं कहीं पे भी रजिस्टर्ड हूं, मैं 12AA, 1023C, 1223BBA तीनों में किसी में भी रजिस्टर्ड हूं और मैं रेंटिंग की सर्विसेज दे रहा हूं, तो वो सारी एग्जेम्प्ट है सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। अगर उसमें रूम्स हैं, अगर उसमें रूम्स हैं तो उसका किराया 1000 रुपए पर डे से कम होना चाहिए। अगर मैं किसी को कम्युनिटी हॉल दे रहा हूं, एक ग्राउंड दे रहा हूं, तो उसका किराया एक दिन का 10,000 से कम होना चाहिए। और अगर मेरी वहीं पे दुकानें हैं, क्योंकि रेंटिंग में तो सब कुछ इंक्लूड हो गया, अगर रिलीजियस प्लेस में से मैंने 4 दुकानें काट के दे रखी हैं तो उसकी रेंटिंग भी एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन कंडीशन लगा दी वो रेंट 10,000 रुपए पर मंथ तक का होना चाहिए, तो 3 रेंटिंग एग्जेम्प्ट है। यानी अगर मैं कमरे दे रहा हूं जिसकी वैल्यू 1000 रुपए से कम है पर डे, मैं पूरी प्रीमाइसेस दे रहा हूं जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए पर डे से कम है, या मैंने दुकानें किराए पे दे रखी है जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए पर मंथ से कम है, तो इन सारे ही केसेस में वो मेरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यानी 3 कैटेगरी है सर, मैं रूम, प्रीमाइसेस और शॉप दे रहा हूं। रूम के लिए 1000, प्रीमाइसेस 10,000 पर डे, कम्युनिटी हॉल 10,000 पर डे। थर्ड कैटेगरी है दुकानें 10,000 पर मंथ। यानी 2 कैटेगरीज मेरी एग्जेम्प्ट हो गई। एक 12AA रजिस्टर्ड एंटिटी अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है वो एग्जेम्प्ट है, अगर एक रिलीजियस सेरेमनी हो रही है कोई भी कर रहा है वो एग्जेम्प्ट है। एक मैं रिलीजियस प्लेस किसी को लेट आउट कर रहा हूं लेकिन उसमें कंडीशन लगा दी कि वो जो रिलीजियस प्लेस है वो 12AA वाला होना चाहिए, 1023 या 1023BBA वाली होनी चाहिए, तो 3 लिमिट्स उन्होंने लगा दी। तो उन्होंने बोला जो रेंटल आपने कलेक्ट किया वो भी एग्जेम्प्ट है। थर्ड इसके अंदर उन्होंने बोला सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और एनपीओ, यानी बेसिकली अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, या तो अनइनकॉर्पोरेटेड है या रजिस्टर्ड है। बेसिकली कोई भी एक ऐसी एंटिटी जो काम कर रही है 2 कैटेगरीज के अंदर, पहला वो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल लेबर या फार्मर के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, वो किसी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल या फार्मर के लिए काम कर रही है। लास्टली या फिर वो 1000 रुपए पर मंथ के लिए आपसे ले, पर ईयर के 1000 पर मंथ का आपसे ईयरली सब्सक्रिप्शन लेती है और आपकी जो ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री वगैरह उसके अंदर प्रमोशन करती है, उसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट या अलग अलग एंसिलरी चीजें करती हैं टू प्रमोट दैट ट्रेड, टू प्रमोट दैट इंडस्ट्री, टू प्रमोट दैट एग्रीकल्चर। वो सारी एक्टिविटीज अगर कोई एंटिटी करती है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। सर इसमें चैरिटेबल एक्टिविटी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर 12AA रजिस्टर्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2 चीजें हैं। एक, या तो आपका सब्सक्रिप्शन 1000 से कम होना चाहिए पर एनम का, दूसरा या तो आप इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और फार्मर्स के साथ डील कर रहे हो, वहां पे आपकी जो भी सर्विसेज आपने दी वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट हो जाती है। एंड सर लास्टली अगर मैं कोई ट्रेनिंग या कोचिंग या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करा रहा हूं और मैं आर्ट के रिलेशन में, कल्चर के रिलेशन में, तो एग्जेम्प्ट है। मैंने एक हैंडीक्राफ्ट, मैंने पेंटिंग का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, इट इज एन एग्जाम। आपने मुझे पेमेंट दी 10,000 रुपए की कि आप एक ऑर्गेनाइज करिए पेंटिंग का शो या आर्ट का शो। अब मेरे पास पैसे मिले, रेसिपिएंट बेनिफिशियरी कोई भी हो सकता है, तो इसके ऊपर मुझे जीएसटी देना है नहीं देना है? नहीं देना, क्योंकि इट इज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी इन आर्ट एंड कल्चर। सिमिलरली अगर कोई 12AA वाली एक्टिविटी एंटिटी अगर वो कोई स्पोर्ट्स या चैरिटेबल स्पोर्ट्स करती है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करती है, तो वो भी मेरा जीएसटी से बाहर है।
सर ये जो एग्जेम्पशंस की आइटम्स होती हैं इसमें कंसेप्चुअलिटी तो बहुत कम होती है, जैसे 66 के अंदर जो थी वो हमने कर ली, मेरी जो चैरिटेबल एक्टिविटी के कंसेप्ट थे वो डिस्कस कर ली। उसके बाद इसमें एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऐड हो जाता है जो जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं वो हमारे को क्लियर नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा ये स्टीरियोटाइप भी हमें लग सकता है। सर उसके बाद एक एडवांस रूलिंग है महाराष्ट्र राज्य शक्ति संघ मर्यादित। इसके अंदर क्या था, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वॉल्व है और एक ये जो एपिलेंट था महाराष्ट्र राज्य शक्ति संघ मर्यादित ये इन्वॉल्व थे। इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ मेंबर्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज होते थे वो लोग अपनी सर्विसेज लेते थे, मेंबरशिप फीस लेते थे अपनी सोसाइटी से जो एपिलेंट था, यानी वो इनको पेमेंट करते थे और ये पेमेंट के बिहाफ में इनको कुछ ट्रेनिंग देता था। उसके अलावा फैक्ट्स में उन्होंने ये बोला कि हम एक एनपीओ है, हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे को तो स्टेट एक्ट के अंदर स्पेशली आइडेंटिफाई किया गया है कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये एजुकेशन ट्रेनिंग देनी है। हम स्टेट लेवल एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और हमें तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया, तो हम एट पार विद गवर्नमेंट है, हम एट पार विद गवर्नमेंट है। जिस पे अथॉरिटी ने बोला नहीं सर, पहली चीज आपने ये तो बोली ही नहीं कि इसमें उन्होंने ये कंसिडर ही नहीं कराया कि इट इज अ सप्लाई और नॉट, जो म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है। मैंने एजुकेशनल जो मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से उन्हीं को सर्विसेज दी, तो क्या म्यूचुअलिटी के कॉन्सेप्ट में इसको बाहर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं हुआ और अथॉरिटी ने इसको भी बहुत हाईलाइट कर दिया कि हम इस इशू को डिस्कस ही नहीं कर रहे। आपने हमसे पूछा ही नहीं कि क्या मैं अपने ही मेंबर्स को उसी के पैसों से जो सर्विसेज बनती है वो दे दूं, वो सप्लाई है या नहीं, ये उन्होंने बोला आपने डिस्कस ही नहीं किया, तो हम भी आंसर नहीं कर रहे। लेकिन आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं हो, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं हो और ना ही आपने कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करी है। चैरिटेबल एक्टिविटी जो एजुकेशन वाली थी, स्किल वाली थी, वो 4 कैटेगरीज के अंदर थी। अगर मैं किसी ओरफन को एजुकेशन दे रहा हूँ, होमलेस को एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं 65 ईयर्स प्लस वाले एज को उसके वहां पे रूरल एरिया के अंदर एजुकेशन दे रहा हूँ। तीसरा, अगर मैं किसी प्रिजनर को एजुकेशन दे रहा हूँ। चौथा, मैं किसी मेंटली डिस्टर्ब पर्सन को एजुकेशन दे रहा हूँ। उन्होंने बोला आपने चारों में से किसी को एजुकेशन नहीं दी, तो आप चैरिटेबल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो और आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी नहीं हो, ना ही आप स्कूल हो, ना कॉलेज हो, ना यूनिवर्सिटी हो, ना ही आप कोई स्किल सेंटर के साथ रजिस्टर्ड हो। So your services are neither exempt under 66 nor under any of the charitable institute activity and it is chargeable to GST. तो सर इसमें ये समझना जरूरी है, जस्ट बिकॉज मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं, इसका ये मतलब नहीं है मुझे जीएसटी पे नहीं करना। अगर मैं एक पेमेंट रिसीव कर रहा हूं, इस केस के अंदर मैंने पेमेंट रिसीव करी, इस केस के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी से पेमेंट रिसीव करी और मैंने उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूं उसी के किसी इंप्लॉइज को, उसी के किसी बेनिफिशियरी को, उसके कहने पे उसके इंप्लॉइज को, ऑफिसर्स को मैं सर्विसेज दे रहा हूं, तो इट इज अ प्रॉपर कंप्लीट ट्रांजैक्शन जहां पे सप्लायर भी है, रेसिपिएंट भी है, कंसिडरेशन भी है और मेरी सप्लाई भी है, सप्लाई भी है, सप्लायर भी है, रेसिपिएंट भी, सप्लाई भी और कंसिडरेशन भी, पांचों चीजें कंप्लीट हो जाती है। कंसिडरेशन मैं इक्विवेलेंट रख रहा हूं अभी बिजनेस के लिए, तो जब ये पांचों चीजें कंप्लीट हो गई तो उसने बोला इसमें आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो वी हैव टू बी वेरी कंसिडरेट कि मैं अपने किसी एनजीओ या एनपीओ को ये मत बोल दूं कि आपकी सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। अगर मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट मिल रही है कि सर ये 50,000 रुपए ले लीजिए और अब आप इसके बिहाफ पे मेरे 50 बंदों को खाना खिलाइए, या आप ये 10 गाय को पालिए, सर वो 10 गाय को पालना तभी एग्जेम्प्ट होगा जब वो चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर डिफाइंड होगा या किसी और सीरियल नंबर के अंदर वो कवर्ड होगा। अगर वो उसमें कवर्ड नहीं है, इवन दो इट इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी, इट इज मतलब नॉर्मली इट इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी बट फॉर जीएसटी पर्पसेस इट विल नॉट बी। गलत है, सही है सर, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिस इज द क्रूअल लॉ कि जिसने सिर्फ 4 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया, उसके अलावा उसने रेंटिंग को बोल दिया कि सर रेंटिंग है, उसके अलावा उसने कुछ स्किल वाले को बाहर कर दिया, बस बाकी सारी एक्टिविटीज के ऊपर उसने जीएसटी चार्ज क्रिएट कर दिया, व्हिच इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि ऐसे केसेस के अंदर हम लोग कैसे पे करेंगे, मतलब व्हाई इट शुड बी पेड जब ये जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए हो रहा है, बट द लॉ एज इट इज वी हैव टू डिस्कस। सर नेक्स्ट इशू ये आता है कि जो गुड्स मैं
मैं एक एनजीओ, एनपीओ या चैरिटेबल ट्रस्ट हूं, मैंने कुछ गुड्स की सप्लाई करी, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? सर, मेरी जितनी भी एग्जेम्पशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के रिलेशन में, गुड्स के लिए कोई एग्जाम्पशन, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं है, तो कोई सेपरेट नहीं है। अगर कोई गुड वैसे ही नील रेटेड है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो टैक्सेबल है तो एनजीओ सप्लाई करे, एनपीओ सप्लाई करे, चैरिटेबल कोई भी नाम दे दीजिए, वो चार्जेबल टू जीएसटी रहेगा। सेकेंड केस, अगर मैं एनजीओ, एनपीओ या चैरिटेबल ट्रस्ट किसी से सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं, मैं आपसे सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं या मैं आपसे गुड्स ले रहा हूं, तो क्या आपको मुझे जीएसटी चार्ज करना है, नहीं करना है? इसमें भी कोई अलग से एग्जेम्पशन नहीं। आप जितना भी अमाउंट मुझसे चार्ज करोगे उसको नॉर्मल प्रोविजन की तरह देखोगे। अगर वो जीएसटी के चार्जेबल है तो आप गुड्स के लिए चार्ज करोगे, सर्विस चार्जेबल है तो सर्विस के लिए चार्ज करोगे। एग्जाम्पल, मैं एनजीओ का ऑडिट कर रहा हूँ, जीएसटी चार्ज करूंगा। एयरटेल वाला उसको इंटरनेट कनेक्शन दे रहा है, उसका जीएसटी लगेगा। वो XYZ से उसने से लैपटॉप खरीदा, उसको जीएसटी लगेगा। यानी एज सच कोई बेनिफिट या कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ जो रिलीफ है वो अगर नॉर्मल केस में है वो सबको रिलीफ है, स्पेसिफिकली एनजीओ, एनपीओ के लिए कोई अलग से रिलीफ नहीं। टैक्सेबिलिटी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट एक पब्लिक लाइब्रेरी रन कर रही है तो कोई एग्जेम्पशन है? सर, अलग से कोई एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन की एंट्री नंबर 50 ने सारी ही पब्लिक लाइब्रेरीज को एग्जेम्प्ट किया हुआ। अलग से चैरिटेबल को एग्जेम्पशन नहीं है, सारी पब्लिक लाइब्रेरीज एग्जेम्प्ट है, उसमें चैरिटेबल भी आके एग्जेम्प्ट होगी, वो अलग बात। सिमिलरली, अगर मैं कोई यात्रा के लिए करा रहा हूं तो वो तो उन्होंने, अभी हमने पढ़ा कि पिलग्रिमेजेस के लिए अगर हम भेजने तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन एंट्री नंबर 60 के अंदर उन्होंने कुछ कैटेगरीज को एग्जेम्पशन दी। वो कैटेगरीज है, हज की यात्रा हो गई, ये बेसिकली इंटरनेशनल है जहां पे हमें अप्रूवल चाहिए होते हैं, वो सारे केसेस हो गए। जीएसटी ऑन कुमोन मंडल विकास निगम लिमिटेड या हज वाली या स्टेज हज कमेटी, इनके थ्रू अगर मैं कर रहा हूं तो मेरी एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट मेरे को यात्रा करा रहा है तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है। यानी हज वाला हज के पैसे ले रहा है, जो भी उनकी कन्वीनियंस फीस है, वो फीस लेके वो मेरी सर्विसेज मेरे को दे रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट कर रहा तो वो नहीं करा। यानी यहाँ पे जो सप्लायर है वो अलग से डिफाइंड है, अलग से उन्होंने बताया हुआ है कि कौन है। So this was the basic overview of the entire NGO and NPO, and now I will be taking upon that CSR issue जो सर ने बोला था कि CSR के लिए प्रमोद जी बोल के गए थे, उसको मैं डिस्कस करूंगा। सर, हाउ मेनी ऑफ अस फील कि जो CSR एक्टिविटी है इट इज चार्जेबल टू जीएसटी, और हाउ मेनी ऑफ अस फील कि इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? हम में से कितने लोगों को लगता है कि जो CSR एक्टिविटी है वो एज सच जो है वो जीएसटी में चार्जेबल होनी चाहिए या जीएसटी में एग्जेम्प्ट होनी चाहिए? इसमें जो मेन कंसर्न आता है CSR के अंदर, मैं तो एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूं तो मेरे को एक सप्लाई मिल रही है, मेरे को मिल रही है, मेरे किसी बेनिफिशियरी को मिल रही है। अब प्रमोद सर ने इसमें दो इश्यूज रेज करे थे। पहला, उन्होंने ये बोला था कि मैंने डायरेक्टली खुद कुछ काम किया, दूसरा है मैंने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को पेमेंट दे दी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ने फिर आगे खर्चा किया। अब मैं बात करता हूं पहले सेकंड एस्पेक्ट से, क्योंकि बहुत इजी एस्पेक्ट है। जब मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, फॉर एग्जांपल, मैंने 1 करोड़ रुपए की डोनेशन दे दी, मेरे पास क्या आया? एक डोनेशन की रिसिप्ट आई। उस डोनेशन की रिसिप्ट के ऊपर क्या मुझे जीएसटी क्रेडिट की कुछ एलिजिबिलिटी होगी? वहां तो जीएसटी क्रेडिट का कुछ लेना देना नहीं है। डोनेशन की रिसिप्ट में जीएसटी चार्ज ही नहीं हुआ होगा, जब चार्ज ही नहीं हुआ होगा तो मेरे को मिलेगा कैसे? यानी इन सिंपल वर्ड्स, जब मैं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को कोई पेमेंट कर रहा हूं, उस केस में मेरे पे जीएसटी चार्ज ही नहीं होता। जब जीएसटी चार्ज ही नहीं होता तो मैं क्रेडिट की बात ही नहीं करूंगा। अब उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ने जब आगे जाके कोई चैरिटी वाला काम किया होगा, उसने जो गुड्स प्रोक्योर करे नहीं करे वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है। तो पहले केस के अंदर तो आईटीसी जो मेन कंसर्न है वो सॉल्व हो गया कि उसमें लगेगा ही नहीं, तो क्रेडिट की बात ही नहीं है। अब दूसरा केस है सर, दूसरे केस के अंदर मेरा उसमें मैंने फॉर एग्जांपल CSR के अंदर
अपने यहाँ पे स्कूल खुलवा दिया और स्कूल के लिए मैं कुछ एक्टिविटीज रन कर, या मैंने यहाँ पे XYZ कोई चीज कर दी विच इज अ कवर्ड CSR एक्टिविटी, और वो एज्यूम करते हैं उसके ऊपर GST अदरवाइज लगता है। मैंने फ्री के अंदर मोबाइल फोन बंटवा दिए किसी बंदे को एंड एज्यूम करता हूँ वो CSR एक्टिविटी के अंदर कवर होता है। अब वो जो मोबाइल फोन का बिल मेरे पास आया जिसको मैंने CSR एक्टिविटी के लिए यूज किया, उस बिल के ऊपर मेरा GSTN भी है और उस पर GST टैक्स भी लगा हुआ है। अब इश्यू आया कि उस इनवॉइस का क्रेडिट क्या मैं GST में ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। सर मोबाइल में एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने मोबाइल परचेज करे और CSR एक्टिविटी के लिए दे दिए, तो सिर्फ उसको इलस्ट्रेशन तक की लिमिट रखेंगे। अब वो जो मोबाइल के ऊपर मेरा GST चार्ज हुआ है, जो मोबाइल के ऊपर मेरा GST चार्ज हुआ है, उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर इसके अंदर हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं उसके अंदर दो डिफरेंट थॉट्स चलते हैं। पहला थॉट तो ये बोलता है क्योंकि आपने उसको फ्री गिफ्ट में दे दिया, अभी मैं CSR की बात करूंगा, आपने क्योंकि उसको फ्री में दे दिया तो सेक्शन 17(5)H उसके अंदर वो कवर हो जाता है, और आपने क्योंकि सप्लाई नहीं करे, आप टैक्स तो दे ही नहीं रहे हो, आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। सर लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट थॉट है। ये जो खर्चा मैंने किया, क्या ये मैंने अपनी मर्जी से किया? क्या ये मैं अपनी मर्जी से वो एक्सपेंडिचर कर रहा था, या मेरे पे लीगल बाउंडेशन था कि अगर मैं ये एक्सपेंडिचर नहीं करूंगा आई विल हैव टू फेस सम पीनल कॉन्सिक्वेंसेज अंडर द कंपनीज एक्ट? जब आपने मेरे को बोला ये करना मैंडेटरी है, इसके बिना गुजारा ही नहीं है, तो क्या ये मेरे बिजनेस का खर्चा नहीं बन गया सर? क्या ये मेरे बिजनेस कंडक्ट करने की? अब मैं जब बिजनेस की डेफिनेशन आप GST में पढ़वाते हो, अपनी बारी जब टैक्स करने की बारी आती है तो बिजनेस की डेफिनेशन बहुत बड़ी हो जाती है, क्रेडिट की बारी में छोटी तो नहीं होगी ना सर। इट इज एंसिलरी एक्टिविटी टू द मेन एक्टिविटी। इसके बिना आप मेरे को कंपनीज एक्ट में जीना आराम कर दोगे, आप मेरे पे पेनल्टीज लगा दोगे, ऑफिसर इंचार्ज के ऊपर पेनल्टी लगा दोगे, इवन प्रोसिक्यूशन के ऑप्शन उसके अंदर ओपन हो जाते हैं। तो जब एक लीगल बाउंडेशन मेरे ऊपर है और मैं अंडर लीगल बाउंडेशन उस गुड्स को परचेज करके कंज्यूम करा रहा हूं फॉर CSR एक्टिविटीज, इन माय हम्बल व्यू द क्रेडिट शुड बी अवेलेबल। लेकिन सर मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिए, CSR इज अ लीगल बाउंडेशन। दूसरा केस ये, एक छोटी सी दुकान थी, उस पे कोई लीगल बाउंडेशन नहीं था, उसने से तेल परचेज, उसने तेल ही बेचता था, उसने 15 किलो तेल जो है वो मंदिर गुरुद्वारे में दान कर दिया कि आप लंगर में यूज कर। अब वो लीगल बाउंडेशन में नहीं है। अब उसने जो एक्टिविटी करी वो पर्सनल नेचर की हो गई। अब उसने वो जो माल भेजा, जो तेल भेजा है गुरुद्वारे में या मंदिर के अंदर, वो उसने अपनी चॉइस से भेजा है, उसको कोई बाउंडेशन नहीं, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। नाउ दैट इज अ पर्सनल ट्रांजैक्शन। अब आप उसको बोल दो कि उसने फ्री में भेजा है, पर्सनल नेचर है, क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो वी विल हैव टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट कैटेगरी। हमें just 1 minute. तो मेरे को ये समझना जरूरी है कि क्या जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं वो अंडर लीगल फ्रेमवर्क कर रहा हूं या अपनी विल से कर रहा हूं। जब मेरे को लीगल, मेरे ऊपर लाइबिलिटी लगी हुई है कि CSR का खर्चा करना ही करना है, उस खर्चे के करे बिना मेरे पे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है, पेनल्टी के प्रोविजंस है, तो मेरे अकॉर्डिंगली, सर अगेन इट इज माय पर्सनल व्यू, यू मे एग्री यू मे नॉट एग्री, बट मेरा अपना व्यू ये है, कंपल्शन कैन नेवर बी सेड टू बी ऑप्शनल और विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। तो कंपल्शन के अंदर मुझे क्रेडिट्स मिलने चाहिए। मेरा बिजनेस कर रहा हूं, उसमें प्रॉफिट्स अर्न कर रहा हूं जो CSR की लिमिट से ऊपर है, तभी मेरे को वो पे करना पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे उसके क्रेडिट्स मिलने चाहिए। यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, बट मैंने अपना ओपिनियन इसके अंदर शेयर किया है जो मुझे लगता है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब उसके अंदर सेकंड एस्पेक्ट ये आती है, मेरे पास दो ही केसेस है, या तो मैंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दिया या फिर मैंने खुद किया। अब इसमें थर्ड, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। आज मैंने तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया जिसमें फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया, CSR एक्टिविटी कर दी, उसके लिए मैंने सीमेंट स्टील खरीदा। सर अब सीमेंट स्टील तो सबके लिए नॉन एलिजिबल फॉर क्रेडिट है, वो तो 17(5) COD में वैसे ही इनएलिजिबल क्रेडिट है,
चाहे आप उसको बिजनेस के लिए यूज करो ना करो। तो जो ब्लॉक क्रेडिट है वो ब्लॉक्ड ही रहेंगे। वो ब्लॉक्ड इस वजह से नहीं होंगे कि मैं फ्री में दे रहा हूं, वो ब्लॉक्ड इस वजह से है क्योंकि वो क्रेडिट एज सच ब्लॉक्ड है। यानी जो 17(5)(a) गाड़ी अगर मैं CSR के लिए यूज कर रहा हूं उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं अगर कोई फूड एंड बेवरेजेस खरीद रहा हूं उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूं उसके लिए सीमेंट स्टील खरीद रहा हूं उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्रेडिट तो किसी को भी नहीं मिलता। तो हम उन क्रेडिट्स की बात करेंगे जो नॉर्मल में मेरे को मिलता, लेकिन यहाँ पे इशू सिर्फ CSR की वजह से बन रहा है कि CSR में मिलेगा नहीं मिलेगा। जो तो क्रेडिट ही नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट है, वो किसी को भी नहीं मिलना, वो मुझे CSR में भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो अदरवाइज अगर ये नॉर्मल रूटीन में मेरे को मिलता तो CSR होने से उसका नेचर चेंज नहीं होगा तो भी मुझे वो क्रेडिट्स मिलेंगे। So with this, if you have any other query on CSR or any other aspect, we can discuss that. And now we can also take the queries of the session for both educational and NGO both. थैंक यू तरुण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े अच्छे से आपने एनर्जेटिक सेशन दिया। और अभी हमारे साथ सर एक क्वेरी है H भट्ट जी की। Institute which is for training in laboratory technician course recognized by the government by an individual as well as computer training, whether liable for registration? Institute which is for training in laboratory technician course recognized by government by an individual. नहीं सर, इसके अंदर आपको ये समझना बहुत जरूरी है। मान लो मैं एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हूँ, मैं नेशनल काउंसिल या स्टेट काउंसिल में एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं 2 कोर्सेज करा रहा हूँ जो कि आइडेंटिफाइड है, जो कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हैं कि दीज आर वोकेशनल कोर्सेज या स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, और एक कोर्स में एंसिलरी करा रहा हूँ। तो एग्जेम्पशन सिर्फ 2 कोर्स पे रहेगी, एक कोर्स मेरा टैक्सेबल रहेगा। तो जो कंप्यूटर ट्रेनिंग है इट विल बी टैक्सेबल, और जो उसकी बाकी ट्रेनिंग है वो मेरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो नेचर समझना भी बहुत जरूरी है कि मेरा वोकेशनल ट्रेनिंग जस्ट बिकॉज मेरा इंस्टीट्यूट एग्जेम्प्ट वोकेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन गया, मेरी सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं होगी। वो सर्विसेज जो वोकेशनल कोर्स में कवर्ड होती हैं सिर्फ वो एग्जेम्प्ट होंगी, बाकी जो नॉन वोकेशनल है इवन तो वो स्किल डेवलपमेंट के लिए होंगी वो तब भी टैक्सेबल रहेगी। थैंक यू तरुण सर। और कोई क्वेरी अगर सर किसी की हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेज कर मैं इधर से अनम्यूट कर दूंगा सर आपको। जी, एनीवन? आई थिंक तरुण जी बहुत अच्छे से समझ में आया सबको, मेरे ख्याल से कोई क्वेरी बची नहीं है। और now I move on our branch vice chairman Manpreet Singh Gambhir ji for formal vote of thanks. Manpreet ji, over to you sir. गुड इवनिंग एवरीवन। सुरेश जी प्रेजेंट है सर क्या? भूपेंद्र जी, सुरेश जी नहीं है। On behalf of Panipat branch of NIRC of ICI and our team members, I thanks Tarun Arora ji for his deliberation today on the 9th, we can say 9th webinar था आज हमारा GST महाकुंभ का regarding the topic educational sector और NGOs के regarding में। थैंक यू तरुण जी सर, वंस अगेन थैंक यू सर। पहली बार तरुण जी से मैं तब मिला था जब लास्ट ईयर हमने वेबिनार सेमिनार कराया था, तब वेबिनार की आदत हो गई, सेमिनार वी हैव कंडक्टेड, तब तरुण जी मुझे मिले थे। तब तरुण जी ने हमारे लिए तब भी GST से रिलेटेड ही आई थिंक तब 90 के साथ था, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली सर, एक 90 के साथ था। हाँ जी, एनुअल रिटर्न हाँ जी एनुअल रिटर्न रिगार्डिंग। And on behalf of branch, I would thank all the members who have joined there and have taken the knowledge from the Tarun ji regarding ये सर एक ना ये टॉपिक जो है हमारा मतलब नॉर्मल वेज में रेगुलराइज्ड यूज में नहीं है, जो NGO से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। बट ये ऐसा जैसे हमारे इनकम टैक्स के अंदर ट्रस्ट वाला चैप्टर होता है ना सर, ट्रस्ट वाला जो सेक्शन 10, 11, 12 वाले ट्रस्ट होते हैं, वैसे ये चैप्टर है कि मतलब इंपॉर्टेंट बहुत है, समझ किसी को नहीं आता और प्रॉब्लम बड़ी होती है। इट इज सेम
it is same as that in the GST. And I would like Tarun ji very much thank you for that deliberation, because ये एक बड़ा typical thing है जिसको समझना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है. आपने बड़ी आसानी से समझाया सर. आज मैंने कई बार मैं नहीं पूरा सुन पाता बिकॉज क्लाइंट मीटिंग आई थी, बट टुडे आई एम देयर. मैंने वीडियो बंद करके आराम से सुना. हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर प्रमोद जी इस टाइम अवेलेबल नहीं है. Yes, जो who has joined earlier, I would like to thank them also. अब वो नहीं है लेकिन वो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो सर उनका थैंक यू भी बनता है, बिकॉज he has given his valuable time also. And so on behalf of सुरेश जी प्रेजेंट नहीं है, and branch committee members, I thanks all the members who are present there. और सर बाकी भूपेंद्र जी आपको बताएंगे कल के वेबिनार के बारे में, कैसे कल क्या है वो पीपीटी वगैरह जो शेयर करनी है. ही इज हैंडलिंग वंडरफुली. थैंक यू मनप्रीत भाई. तरुण जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप यही चैट बॉक्स में अगर आप ये पीपीटी शेयर कर दें तो, क्योंकि कुछ मेंबर जो हैं वो बाहर से हैं सर, तो उनकी मेल आईडी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो एक्चुअली हम यहीं पर अगर आप चैट बॉक्स में शेयर कर देते. तरुण जी सर अभी मैं उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके भेज दे रहा हूँ. ओके सर, आप भेज दो. और सर किसी मेंबर की भी अगर कोई क्वेरी, तब तक हमारे साथ तरुण जी जुड़े हुए हैं. और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कल हमारा 10th वेबिनार है जीएसटी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर और कमीशन एजेंट, जैसे कच्चा आड़तिया टाइप हो गए. और हमने इनको अब तक अनटच एरिया है हमारे काफी जो जीएसटी वेंडर्स थे. और जैसे आज का टॉपिक था एजुकेशन एनजीओ सेक्टर में, हम जैसे किसी सोसाइटी के यहाँ रेंट पे लेते हैं कोई चीज, तो हमारे से ये चीजें जो हैं वो रेगुलर हमारे टच में आती रहती हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस हमें इन चीजों का पता नहीं होता कि हाउ टू हैंडल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो विद दिस थैंक यू वेरी मच तरुण जी. और आप सर एक बार पीपीटी दे दीजिए. और सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है जो यहाँ पर कनेक्टेड है कि पानीपत ICAI यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी अब तक महाकुंभ की जितनी भी वीडियो हैं वो सारी वहाँ पर अवेलेबल हैं. ये वीडियो भी आपको नेक्स्ट डे अवेलेबल हो जाएगी जो आज की है. और आप सभी का पेशेंस हियरिंग के लिए थैंक यू वेरी मच. और किसी मेंबर की अगर सर कोई क्वेरी में बन सके ना, अगर कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में या हैंड रेज कर दीजिए, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर सकता हूँ. तरुण जी आप अभी कन्वर्ट कर रहे हैं सर? हाँ जी सर, बस एक सेकंड. हाँ जी जी बिल्कुल. और सर CPRs के रिगार्डिंग सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है, अगर आप CPRs के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप हमारे ब्रांच ऑफिशियल मैडम ममता हैं, आप एक बार उनसे जरूर आप कंफर्म कर लेना. मैं उनका नंबर यहाँ पर शेयर कर देता हूँ. तरुण जी आपकी पीपीटी की वेट हो रही है सर काफी. सर अपलोड हो रही है बस. सर पीपीटी आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है. एक्चुअली में जो आपने एनिमेशन वगैरह जो बनाए हुए हैं ना वो बड़ी अच्छी है. और आई थिंक आपकी आ चुकी है सर पीपीटी एजुकेशन. चैट बॉक्स में सर सभी के लिए पीपीटी आ चुकी है. यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर. All the members are requested. We are taking pause for 2-3 minutes. Done. हमने तो डाउनलोड कर लिया सर, बाकी और मेंबर्स आप डाउनलोड कर लो सर.
फिर भी अगर किसी की कोई रह जाती है तो हमने डाउनलोड कर लिया, मैं आपको यहाँ से भी शेयर कर दूंगा, आप व्हाट्सएप कर देना मुझे ईमेल आईडी। मनप्रीत जी, तरुण जी ने काफी यंग एज में देख रहे हो, आप देख रहे हो सर उनके बैक साइड में। हाँ जी, हाँ हाँ, वो तो मैं देख चुका हूँ सर। एक आध हमारी भी होगी, हमने भी दी थी। वंडरफुल नॉलेज ही हैज। अब सर ऐसा है, अब तो फिजिकली तो कुछ पकड़ा नहीं सकते, अब सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स ही दे सकते हैं, या फिर जो इन्होंने शेयर किया उसके लिए तारीफ ही कर सकते हैं इस टाइम, तो हमारे लिए पॉसिबल भी वही चाहिए होता था। ये तो एक पॉइंट के बाद इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जी जी जी। और अगर आपको टाइम सेविंग बहुत होती है मनप्रीत, तब ये नहीं तो वहां से आते हैं 1-1.5 घंटा तो वहीं से लग जाता है, मान लो कहीं से भी आते हैं। अगर हम सेमिनार के बेसिस में महाकुंभ रखें ना, तो शायद से लोगों को इकट्ठा ना कर पाए। जी जी जी। वेबिनार के बेसिस पे तो हम कर ही लेते हैं, बिकॉज एक तो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, नॉट ओनली फ्रॉम पानीपत, people from members from another cities also joined there, और साथ में टाइमिंग ऐसा है, लोग काम करते हुए भी सुन सकते हैं, धीरे धीरे सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब जैसे YouTube पे अपलोड हो जाएगा, एक आध तो मैंने भी स्किप किया हुआ है, भूपेंद्र जी को पता है, खुद ही मैंने 3-4 स्किप हुए हैं, तो मैंने YouTube पे देखे हैं फॉर एनी रीजन। तो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस, लेकिन जब सेमिनार होंगे तो सर फिर जो सेमिनार में है वो तो आपको आना ही पड़ेगा, एक बार बिल्कुल आएंगे। ठीक है तरुण जी, तरुण जी के तो आजकल भी व्हाट्सएप तो आते रहते हैं इनका, जहाँ भी वेबिनार होता है, हमें पता है। तो थैंक यू करें मनप्रीत जी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे महाकुंभ को सफल बनाने के लिए। सर आपने जो ज्ञान की ज्योति आज जलाई है, तो नेचुरल सी बात है कि आज महाकुंभ जो है काफी उज्जवल हो गया। और आप सभी जो मेंबर यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आप सभी का भी बहुत सर, मैं तरुण जी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक और आपसे, हमारी जो ऑडियंस है सब बड़ी जिसको कहते हैं ना कि बड़ी अफेक्शनेट या लवेबल जो है हमारी एक ऑडियंस है, जो फीडबैक भी प्रोवाइड करती है अच्छे अच्छे से, और अगर कोई कहीं पर कोई दिक्कत लगती है तो वो भी प्रोवाइड करती है, और बिल्कुल पेशेंसली सुनते भी हैं सर। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जो जितने भी मेंबर आप यहाँ पर कनेक्टेड है और जो चले गए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और तो कल मिलते हैं फिर 4 बजे नेक्स्ट वेबिनार के लिए। तरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सर, थैंक यू मनप्रीत भाई।